গতকাল মিড নাইট প্রায় 11:30-12টা নাগাদ আমরা একটা কোম্পানির পক্ষ থেকে একটা ইশারা পাই মাত্র, ট্রেজার এনএফটি কামিং সুন। এই সামান্য একটি নোটিফিকেশনের ভিত্তি করে সারা রাত্রি ট্রেজার প্রেমী বন্ধুরা আনন্দ উল্লাস উৎসবের মতো করে পালন করেছেন। আমরা জানি, আমরাও করেছি। সত্যি কথা বলতে, এই নোটিফিকেশনটা পাওয়ার পর আমাদের অনেকেরই রাতের ঘুম উড়ে গেছে শুধুমাত্র আনন্দে। ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আমাদের সামনে অনেকগুলো আনন্দের দিন আসতে চলেছে ট্রেজারের হাত ধরে। সুতরাং আপনারা সকলেই সর্বদা ট্রেজারের সাথে যুক্ত থাকুন, সর্বদাই আমাদের টিম বেঙ্গলের সঙ্গে থাকুন এবং সমস্ত রকম আপডেটস আপনারা পেয়ে যাবেন। সকল ট্রেজার প্রেমীদের বলছি, কোম্পানি আমাদের মধ্যে খুব বেশি হলে 5 থেকে 7 দিনের মধ্যে, সম্ভবত আগামী 5 থেকে 7 দিনের মধ্যে সমস্ত রকম সিকিউরিটি পারপাস থেকে শুরু করে সমস্ত রকম টেকনিক্যালি কাজ কোম্পানি নিজের সমস্ত রকম দিক তৈরি করে আমাদের মধ্যে স্ট্রংলি ভাবে ব্যাক করছে, যেখানে ট্রেজার স্মুথলি ভাবে রান করবে এবং সেখান থেকে আমরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারবো। ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আমরা বিগত দিনে টাপ টোকন সম্বন্ধে প্রায় বলতাম, আসন্ন সময় আমাদের টোকনের রেট হাই হতে চলেছে এবং আপনারা অবশ্যই কালকে রাত্রির দিকে অনেকেই লক্ষ্য করেছেন যে নোটিফিকেশন আবার আসার পরপরই টোকনের রেট হাই হয়ে গেছিল এবং উঁচু থেকে উঁচুর দিকেই যাচ্ছিল। যদিও কিছুটা আপ ডাউনের মধ্যে আছে, কিন্তু আমরা কোনো সময় টিম বেঙ্গলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে টোকন কিনতে বা ট্রেজার এনএফটি বা ট্রেজার ফান্ডের মধ্যে আমরা ইনভেস্ট করতে বলবো না, কারণ আমরা কোনো ইনভেস্টার নই, আমরা কোম্পানির কোনো এমপ্লয়ার নই, আমাদের কোম্পানির সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। আমরা আপনাদের মতোই সাধারণ একজন, শুধুমাত্র আমরা প্রত্যেকটা টেকনিক্যাল পার্টগুলো দেখি, প্রত্যেকটা মিটিং অ্যাটেন্ড করি এবং সর্বোপরি হোয়াইট পেপারকে লক্ষ্য করে আমরা কথাগুলো বলি এবং সব কথাগুলোই মোটামুটি ফলে যায় এবং সেগুলো কথা সফলতা পায় বলে আজকে আপনারা আমাদের মিটিং এ প্রতিনিয়ত জয়েন হন এবং আপনারা আপনাদের সমস্ত রকম প্রশ্ন উত্তর আপনারা এখান থেকে পেয়ে যান এবং আপনাদের সহযোগিতা এবং সহানুভূতি থাকলে আমরা এই ট্রেজার ফান্ডের যে এই টিম বেঙ্গল গ্রুপ আমরা আরো আগে থেকে উচ্চ থেকে আরো উচ্চতর জায়গায় নিয়ে যাব, যাতে আপনাদেরকে আমরা সর্বাধিক পরিষেবা দিতে পারি। এটাই টিম বেঙ্গলের লক্ষ্য। আর সবচাইতে বড় লক্ষ্য, যাদের আর্থিকভাবে আপনারা ট্রেজারের মধ্যে ফেঁসে আছেন, যারা টিম টিম বেনিফিটের পাওয়ার জন্য বা নিজের বেশি ইনকাম পাওয়ার জন্য আপনারা ট্রেজারে আপনাদের অর্থ লগ্নি করেছেন, যারা ফেঁসে আছেন তারা যাতে বিশেষ করে উপকৃত হন এবং আপনাদের যাতে আপনারা যাতে লাভবান হন, সেই দিকে আমরা সর্বদাই এগিয়ে চলব। আপনাদের আজকে আরেকটা খুশির খবর দেওয়া আছে। আজকে আমাদের মঞ্চে চাঁদের হাট বসতে চলেছে। চাঁদের হাট মিন্স আমাদের মধ্যে আজকে হিন্দি ভাষী সৌরভ স্যার, ভিপিন স্যার, লফিন্দর স্যার, সিদ্ধ সরফ জৈন স্যার থেকে শুরু করে মনদীপ স্যার থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি বড় বড় লিডার্স আমাদের মধ্যে 7:30 নাগাদ উপস্থিত হবেন এবং ওনারা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আপনাদের সামনে রাখবেন, যাতে আপনাদের আগাম দিন পথ চলা সুবিধা হয়, আপনাদের যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় এবং সর্বোপরি আপনাদের ট্রেজারের হাত ধরে যাতে আপনারা এখান থেকে বিপুল পরিমাণে অর্থ উপার্জন করতে পারেন, সেই সমস্ত তথ্য ওনারা আপনাদের কাছে অবশ্যই প্রদান করবেন। আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন যে আমরা 6 জনা মিলে টিম বেঙ্গল এই লাইভ টেলিগ্রাম চ্যানেলটি আমরা স্টার্ট করেছি এবং আমাদের এই ইউসুফ দা, আশিক ইকবাল দা, বিপ্লব মাজিদুল দা, আমাদের টেকনিক্যাল এক্সপার্ট আলুল দা এবং সর্বোপরি আমাদের দেবাংশু দা এবং আমি, আমাদের এই 6 জনা আমাদের পথ চলা শুরু হয় বিগত মার্চের পর। মে মাস থেকে আমরা এই
জার্নি শুরু করি। আজকে বর্তমানে এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আছি এবং আমাদের এই সর্বোপরি এই গ্রুপের আমরা একজনকে নেতা হিসাবে বেছে নিয়েছি, সেই হচ্ছে আমাদের দেবাংশু স্যার। এবং এই দেবাংশু স্যারকে আমরা সর্বদাই হিন্দি ভাষী গ্রুপে তাকে আমরা লিডার হিসাবে প্রমোট করেছি, যাতে ওখান থেকে আমাদের সমস্ত রকম নির্যাস আছে এবং আমরা সমস্ত কিছু আলোচনার মাধ্যমে যা বেস্ট রেজাল্ট হবে সেটা আমরা আপনাদের মধ্যে প্রদান করার চেষ্টা করে থাকি। মনে রাখবেন, এখানে আমি বলে কোনো শব্দ কেউ ব্যবহার করে না। আমাদের মধ্যে আমরা মিলেই এবং আপনাদের সহযোগিতায় আমাদের এই টিম বেঙ্গল গ্রুপ আরো এগিয়ে যাবে। আহ মনে রাখবেন, আমাদের এই টিম বেঙ্গলের পক্ষে আমাদের হিন্দি ভাষী লিডারদের সহযোগিতা থাকায় আমরা আপনাদেরকে আরো আগাম দিনে প্রচুর কিছু এখান থেকে শেখানোর চেষ্টার বা শেখানোর ব্যবস্থার আমরা একটা চিন্তা ভাবনা করেছি। শুধুমাত্র আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আপনাদের আপ লাইন ডাউন লাইন যত রকম লাইন থাকুক না কেন, যত রকম ট্রেজারের সাথে জড়িত মেম্বার থাকুক না কেন, আপনারা সকলকেই আমাদের এই চ্যানেল লিঙ্কটি সেন্ড করে দিয়ে তাদেরকে জয়েন করিয়ে দিন এবং আপনাদের নিজের যেটা হেডেক বা চাপ সেটা আপনারা কমিয়ে আমাদের এই টিম বেঙ্গলের উপরে ফেলে দিন। আমরা সমস্ত রকম সহযোগিতা এবং সমস্ত রকম সাহায্য করতে আমরা তৎপর। যাই হোক, আমি অনেক কিছু বলে ফেললাম। আমার কথার মধ্যে কারো যদি কোনো ব্যক্তির যদি নিম্নতম চুল পরিমাণ খারাপ লেগে থাকে, প্লিজ আমাকে দয়া করে ক্ষমা করবেন, কারণ আমি কোনো বড় লিডার নই। আমি একদম গ্রাউন্ড লেভেলের আপনাদের মতোই সাধারণ একটা ট্রেজার ফান্ড বা ট্রেজার এনএফটি ইউজার। সমস্ত পার্টিসিপেন্টকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার পক্ষ থেকে আমি বিপ্লব বসাক, মালদা থেকে। আমাদের মধ্যে বিপ্লব মাজদুল স্যার আছেন। বিপ্লব মাজদুল স্যার, প্লিজ আপনি আসুন, মিটিং কন্টিনিউ করুন এবং আমাদের সমস্ত এডমিন প্যানেলে যাদের আছে তাদের সকলকে সুযোগ করে দিন। বিপ্লব মাজদুল স্যার, প্লিজ কাম অন দ্য স্টেজ। বিপ্লব মাজদুল স্যার, প্লিজ। বিপ্লব মাজদুল স্যার, আপনি মিটিং এ প্রেজেন্ট আছেন? বিপ্লব মাজদুল স্যার। বিপ্লব স্যার, আমি আসছি। আমাদের মধ্যে এসে গেছেন আমাদের ग्रेट होस्ट श्री विनय सोनी सर जी। वो हम लोगों के बीच हाजिर हो गए हैं। तो जितने भी हम लोगों का पार्टिसिपेंट है, उन लोगों को, जितने भी मेंबर्स हैं, उन लोगों को सबको वेलकम करने के लिए विनय सर आपका सादर आमंत्रण है हमारा पोडियम पे। आप आइए और हमारा जो मंच है उसका चांचन लगाइए सर। विनय सर, Wow, great. come on the stage. Yes, yes, yes. Most welcome, sir. Most welcome. वेलकम सर जी। जी सर, जी सर, जी सर. वेलकम टू वेस्ट बंगाल। Welcome to sir. Yes, yes, yes. Very, very thanks Actually- सर। आपने इतना मान सम्मान दिया सर। शिवांशु सर, बहुत ही धन्यवाद सर आपका। और मैं आज इस पैनल पे आया और सर ने मेरे को ये विनय सोनी सर, मौका दिया। विनय सोनी सर, विनय सोनी Yes, सर, sir. इस मंच का हम लोगों का को होस्ट है अलीउल सर है। वो आपका हिंदी ग्रुप में भी एडमिन है। वो वीडियो उधर से रिकॉर्डिंग करते हैं। इधर हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो शेयरिंग करते हैं। और उधर भी एडमिन भी है। हमारा टेक्निकल पार्ट अलीउल सर ही देखते हैं। इसके इकबाल सर, वो भी हमारा एडमिन पैनल का है। और है विप्लव बोशाक सर, और है हमारा विप्लव मजीदुल सर। उनको शायद देख नहीं रहे हैं, कहाँ गए वो है। ये सिक्स जो बंदा है, ये लोगों का परम चेष्टा से आज हम लोग इधर इस मंच को सजा के रखते हैं और हम लोगों के साथ कोशिश करते हैं। ग्रेट लीडर्स के अंदर संतोष राणा सर है, मसूद भाई है, और बीच बीच में क्या बोलता है तोफाई मिर्जा सर है। वो आते हैं और हम लोगों का कोशिश करते हैं इस मंच को सजाने के लिए।
संवारने के लिए। सर, पोडियम इज योर, प्लीज कंटिन्यू सर। देवांशु यस सर, सर, मैं थोड़ा कुछ हिंदी हिंदी सर विनय चलेगा ना सर? विनय सर हिंदी सर मेरे को आती है लैंग्वेज सर, हिंदी चलेगा ना सर? विनय सर, मैं एक तो बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली देवांशु सर सबका नाम लिया, अपना जो आपका कीपी एनालिसिस यूसुफ सर का नाम थोड़ा लेने भूल गए, मिस्टेक कर गए। तो 6 बंदों में यूसुफ सर भी है। वही मैं ढूंढ रहा था, किसका नाम बात चला गया। पहले पहले विनय सर को हम लोग कोई एक बंदा उनको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूँ। विनय सोनी सर ऐसा शख्स है जो दिन और शाम सुबह जितने सारे ग्रुप चलते हैं टीचर के लिए पॉजिटिव बात होते रहते हैं, उस सारे ग्रुप का होस्टिंग करता है विनय सोनी सर। तो मोस्ट वेलकम विनय सोनी सर। हम लोग एक ही है, बंगाल और हिंदी ग्रुप मिला के हम लोग टोटल ऑल ओवर यस इंडिया में यस चलाते हैं, जहाँ सिर्फ बातचीत होता है सर। थैंक यू सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर। थैंक यू। माय नेम इज यस सर, इकबाल। यस सर, यस सर, यस सर, वेरी वेरी थैंक्स सर। जबरदस्त पैनल पे आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स है। हमारे दिवांशु दद्दा, हमारे जितने भी टेजर फैमिली मेंबर अभी तक 191 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूं। उससे पहले मेरे दोस्त, हमें ये मौका मिला आप सबके सामने प्रेजेंट करने का, और बड़ा अच्छा लगता है मेरे दोस्त आप सबके सामने प्रेजेंट करने का, कभी होस्ट करने का, कभी सिस्टम प्लान देने का। मेरे दोस्त बड़ा अच्छा लगता है, सीखना और सिखाना, पहले लर्निंग फिर अर्निंग मेरे दोस्त ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये जितना भी हमारा सबका मंच चलता है इंडिया में, आपका बंगला में, जिधर भी चलता है मेरे दोस्त, उधर अगर हमें टेजर की नॉलेज मिल रहा है तो नॉलेज लेना चाहिए मेरे दोस्त। ये मंच सब एक ही है मेरे दोस्त, हम सब लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। जितने भी टेजर फैमिली का मंच चलता है मेरे दोस्त, तो सब अपने ही फैमिली मेंबर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम मेरे दोस्त। तो मुझे बंगला नहीं आता, हिंदी में ही होस्टिंग करूंगा फिर उसके बाद बिल्कुल। तो मेरे दोस्त, ओके मेरे दोस्त, मिस्टर विनय कुमार, रानीगंज प्रतापगढ़ से, यूपी से, त्रिवेणी संगम नगरी से मेरे दोस्त। मेरे दोस्त इलाहाबाद से, जितने पार्टिसिपेंट इवनिंग से स्वागत है, वाओ ग्रेट लग रहा है। पार्टिसिपेंट के बीच में इस मंच पे मेजबान हो चुके हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। विनय सर, आपका साउंड नहीं आ रहा है, या मेरा नेटवर्क दुर्बल है? नहीं, विनय सर का साउंड नहीं आ रहा। विनय सर का साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। शायद उसका আমার फोन শোনা आ যাচ্ছে? गया আমারটা होगा। শোনা যাচ্ছে? हाँ हाँ, सही एकदम है, क्लियर। अभी आ रही सर? हाँ, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। विनय सर, यस आ सर, रहा है, यस सर, कंटिन्यू प्लीज। जी जी जी, यस यस यस। ओके मेरे दोस्त, मिस्टर विनय कुमार, रानीगंज प्रतापगढ़ से, यूपी से, त्रिवेणी संगम नगरी से मेरे दोस्त। हमारे बीच में अभी तक 207 पार्टिसिपेंट आ गए हैं। अभिनंदन, स्वागत मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन स्टेजर फैमिली मेंबर पे, स्टेजर के मंच पे मेरे दोस्त आ गए हैं, तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन मेरे दोस्त। और मीटिंग में आने से पहले मेरे दोस्त, मीटिंग का एक रूल होता है, फॉलो करना पड़ता है। और रूल क्या होता है मेरे दोस्त, आप अपने मीटिंग का स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में मेरे दोस्त आप अपने स्टेटस को मेंटेन कर लीजिए। आपका स्टेटस क्या होता है मेरे दोस्त? व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, मैसेंजर है, जितना भी सोशल मीडिया टूल्स है मेरे दोस्त हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं, वहां पे हमें स्टेटस को मेंटेन करना है। और मेरे दोस्त, आज की मीटिंग सेशन बहुत ही वंडरफुल और शानदार होने वाली है। और अपने नियर डियर, अपने बिजनेस पार्टनर, भाई पार्टनर को मेरे दोस्त कॉल या मैसेज कर लीजिए, आप इनवाइट कर लीजिए मेरे दोस्त। और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। आपके पास में ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा मेरे दोस्त, वहां पे आप इस लिंक को शेयर करें और अपने स्टेटस को भी शेयर करें, सेंड करें, और अपने स्टेटस को मेंटेन कर लीजिए। स्टेटस आप मेंटेन कर रहे होंगे मेरे दोस्त, आई होप, मुझे आशा है, उम्मीद है। और आप सब लोग जितने भी लोग आए हैं टाइम के पंक्चुअल हैं, काबिले तारीफ हैं, अपने आप में एक ब्रांड है, दिग्गज लीडर है मेरे दोस्त। और बहुत ही अच्छा मेरे दोस्त, गुड न्यूज अपन सब लोग को कल नाइट में मिल गया, और बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत सारे लोग के गाल पे तमाचा लगा मेरे दोस्त। इसलिए बहुत सारे लोग अपने सिस्टम के बारे में गलत सलत बोल रहे थे कि भाग गया है, चला गया है, विड्रॉल नहीं आएगा, लोग निगेटिव हो गए थे, लोगों को निगेटिव कर दिया जा रहा था मेरे दोस्त, और दूसरे दूसरे सिस्टम में ज्वाइन भी करवा दिया जा रहा था मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त, आपने देखा कल से क्या हलचल मची हुई है। मैं इस सिस्टम को बहुत ही थैंक्सफुल बोलना चाहूंगा, बहुत ही ईमानदार सिस्टम है, प्यारा सिस्टम है मेरे दोस्त। टेजर फंड, ये प्यारा सा मंच जो सजा हुआ मेरे दोस्त, टेजर फंड .io/XYZ का है मेरे दोस्त। यहाँ पे मेरे दोस्त टेजर की बातें होंगी, अदर बातें नहीं होंगी, अदर चर्चाएं नहीं होंगी। आई होप, आई एम प्रॉमिस मेरे दोस्त, आपको ट्रेजर से ही संबंधित बातें मिलेंगी। और ये प्यारा सा मंच मेरे दोस्त, ये आप सबका है,
किसी एक का नहीं है, ये आप सब लोग का मंच है मेरे दोस्त। यहाँ पे आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। आपके पास में जो भी जानकारी हो टेजर से रिलेशन मेरे दोस्त आप बता सकते हैं, हम आपसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी छोटा बड़ा नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पे भाई मेंबर हैं, हमारे जितने भी भाई बहन बैठ चुके हैं अभी तक, हमारे जितने भी सुपर डुपर दिग्गज लीडर मेरे दोस्त आ चुके हैं इस मीटिंग में, काबिले तारीफ है, थैंक्स है, अभिनंदन, स्वागत है मेरे दोस्त। आज मेरे दोस्त कहा जाता है लर्निंग फिर अर्निंग। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तब तक आप अर्न नहीं करेंगे। जो चीज मार्केट में दिखता है वो चीज बिकता है मेरे दोस्त। पहले आप अपने ऊपर सप्लाई करो, फिर मार्केट में, पहले आप अपने ऊपर अप्लाई करो, फिर मार्केट में मेरे दोस्त सप्लाई करो। मेरे दोस्त ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही अच्छा सिस्टम है मेरे दोस्त। यहाँ पे हम बेरोजगार को रोजगार देते हैं। जितना बड़ा मेरे दोस्त हमारा नेटवर्क होगा उतना बड़ा अर्निंग भी होगा मेरे दोस्त। हम सबके लिए एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन मेरे दोस्त लेकिन अगर आपने 1000 का नेटवर्क बना लिया तो आपके लिए 24 घंटे हैं। अगर वो 1000 लोग एक एक घंटा भी नॉर्मली काम करते हैं आपके लिए, तो 1000 घंटा आपके लिए एक्स्ट्रा काम होता है मेरे दोस्त। आप कहीं पे भी हैं, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे दोस्त आपको क्या सिखाता है? मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम मेरे दोस्त। यहां से आपके ड्रीम्स पूरे होते हैं, यहाँ से आपके गोल भी अचीव होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग मेरे दोस्त आपके गोल नहीं है तो कोई मोल नहीं है। आपको गोल बनाने चाहिए, छोटे छोटे बड़े बड़े भी गोल बनाने चाहिए मेरे दोस्त। और मेरे दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग तो एक ऐसा मार्केटिंग है मेरे दोस्त कि यहाँ पे ना तो आपसे एजुकेशन पूछी जाती है, ना तो कास्ट पूछा जाता है, किस घर से बिलोंग करते हैं, किस शहर से बिलोंग करते हैं। नो मेरे दोस्त, नो। यहाँ पे मेरे दोस्त कर भला तो हो भला। जितने भी हमारे बड़े बड़े मेंटोर हमारे मतलब कि आते हैं यहाँ पे सिखाने के लिए, गाइड करने के लिए मेरे दोस्त, उनके पास में इतना टाइम नहीं रहता, लेकिन फिर भी फ्री में हमें मीटिंग कंटिन्यू करते हैं, सिखाते हैं। और मेरे दोस्त अगर आप मीटिंग में आई गए होंगे तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आधा अधूरा जानकारी बहुत ही खतरनाक होता है मेरे दोस्त। अगर मीटिंग में आए हैं तो आप पूरी ही मीटिंग को लेके जाना मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आपके पास में अंबानी जी अडानी जी का फोन आ रहा होगा मेरे दोस्त, अभी मीटिंग को लीव करके जा सकते हैं। अगर आपके पास में टाइम है तो मेरे दोस्त एक ऐसे प्लेस पे बैठे ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और पेन डायरी लेके मेरे दोस्त आप जरूर बैठें। क्योंकि मेरे दोस्त अगर किसी भी हमारे मेंटोर की बात को आप नोट डाउन करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तब आपका काम भी ग्रोथ करता है, आपके टीम का भी काम ग्रोथ करता है। लर्निंग फिर अर्निंग मेरे दोस्त, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, लर्न फिर अर्न। किसी भी फील्ड में मेरे दोस्त अगर हम वर्किंग करते हैं तो हमें सीखना पड़ता है। हमारी लाइफ है मेरे दोस्त, हम ऑल टाइम सीखेंगे। अगर मेरे दोस्त हमें अगर कार मिल जाए, कार की चाबी मिल जाए, अगर हम सीखे नहीं रहेंगे तो हमें क्लच कैसे दबाना है, स्टार्ट कैसे करना है, स्टीयरिंग कैसे घुमाना है मेरे दोस्त, नहीं सीखेंगे तो काफी एक्सीडेंट कर चुके रहेंगे मेरे दोस्त। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग के साथ में एक्सीडेंट हो रहा है। क्या एक्सीडेंट? जैसे उनको टच वॉलेट नहीं बनाना आ रहा है, स्वैपिंग करने नहीं आ रहा है, उनको इम्प्लीमेंट नहीं है, वो मतलब कि मेरे दोस्त अपने वॉलेट के की को भूल चुके हैं, अपना सिस्टम भी भूल चुके हैं। तो मेरे दोस्त ये सब टेक्निकल नॉलेज होती है मेरे दोस्त। इस पैनल पे आपको बेसिक नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज मेरे दोस्त आपको मिलेंगे, इसी पैनल से आपको टोटली मिलेंगे मेरे दोस्त। ये जो मंच चल रहा है यहाँ पे मेरे दोस्त आपको सिखाया जाता है बेसिक नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, क्रिप्टो के बारे में मेरे दोस्त नॉलेज सिखाया जाता है। यहाँ पे हर एक चीज आपको, और मेरे दोस्त आपका क्वेश्चन भी इस मंच पे लिया जाता है। और हमारे जितने भी टेजर फैमिली मेंबर बैठे रहते हैं, अगर एक लोग का क्वेश्चन होता है तो मेरे दोस्त सबका आंसर मिल जाता है मेरे दोस्त ना। तो मेरे दोस्त ये अब मीटिंग का टाइम अपने हो चला है, ज्यादा टाइम मेरे दोस्त मैं नहीं लूंगा, इसलिए मैं अपने सुपर डुपर अपलाइन का स्वागत और वेलकम करूंगा। बातें करने के लिए मेरे दोस्त बहुत कुछ है, कभी मीटिंग लूंगा तो आपको पूरा बताऊंगा, जर्नी से लेके मेरे दोस्त जितना भी मुझे ज्ञान है मैं आप सबको जरूर बताऊंगा। मुझे तो ज्यादा ज्ञान नहीं है मेरे दोस्त, सिस्टम के बारे में मुझे 1% की ज्ञान है, और हम आप सबसे ही सीखते रहते मेरे दोस्त। यहाँ पे कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं मेरे दोस्त, हम अपने छोटों से भी सीखते हैं, बड़ों से भी सीखते हैं मेरे दोस्त। तो अगर हम किसी को मान सम्मान इज्जत देते हैं तो हमें भी मेरे दोस्त मान सम्मान इज्जत मिलता है। इसलिए मेरे दोस्त अब मैं ये डिजिटली मीट कर रहे हैं, हम फिजिकली मीट नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त। नहीं तो हम अपने सीनियर पर्सन का, जितने भी हमारे ग्रेट अपलाइन हुआ करते हैं होते हैं, हम उनको फूल माला से स्वागत करते, बुके देते, हैंड टू हैंड करते, गले मिलते और चरण स्पष्ट करते मेरे दोस्त। लेकिन मेरे दोस्त अभी हम लोग एक तार के माध्यम से, एक टावर के माध्यम से, एक सैटेलाइट के माध्यम से मेरे दोस्त हम लोग कनेक्ट हैं। कोई देश से है, कोई विदेश से, कोई दिल्ली से, कोई बॉम्बे से, कोई कोलकाता से मेरे दोस्त। इस पैनल पे बहुत दूर दूर से लोग विराजमान हैं, मीटिंग को ले रहे हैं मोबाइल के माध्यम से मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त ये
पावर है सोशल मीडिया का। आज सोशल मीडिया ना होता मेरे दोस्त, हम दिबांशु सर को नहीं जानते, अमूल सर को नहीं जानते, दीप सर को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते मेरे दोस्त। लेकिन अब मैं अपने मेंटोर का अभिनंदन और स्वागत करूंगा, जितने भी हमारे दिग्गज लीडर हैं। उसके बाद मेरे दोस्त अपने माइक को मैं हैंड ओवर कर दूंगा अपने दिबांशु दद्दा के पास में। उसके बाद के सेशन को कंटिन्यू करेंगे मेरे दोस्त दिबांशु दद्दा जी। जैसे इस टेजर फंड डाटा IO XYZ के चेन ब्लॉक श्री अमूल सर जी, लखविंदर सर, परमिंदर सर, विपिन सर, सौरभ श्रीवास्तव सर, संजय सर, दीप नारायण सर, मनदीप सर, योगेश सर और डॉक्टर अमूल सर जी, डॉक्टर यश सर जी, हमारे दिबांशु दद्दा जी सुपर डुपर हर टाइम टीम को गाइड करते रहते हैं। और जैसे हमारे सुंदर लाल सर जी, और जैसे हमारे होस्ट पार्टनर में लेडी पार्टनर मेरे दोस्त सनाया मैम हो गए, रुखसाना मैम हो गए, नेहा मैम हो गए, अपने रश्मिता मैम हो गए मेरे दोस्त। ये सब इतने टाइम मेरे दोस्त मॉर्निंग और इवनिंग में हाउस वाइफ के पास में बहुत सारा वर्क होता है, फिर भी आते हैं गाइड करने के लिए, टीच करने के लिए, होस्ट करने के लिए मेरे दोस्त। और बहुत अच्छे से टीम को होस्ट भी करते हैं और बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभाते भी हैं। तो मेरे दोस्त अब अपने माइक को मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा अपने गुरुजी के पास में, दिबांशु दत्ता के पास में मैं करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे दोस्त हम एक चीज ये कहेंगे कि जितने लोग का माइक ऑन होगा दिबांशु दत्ता जी को वो मतलब कि क्लैपिंग के माध्यम से बुलाएंगे, क्योंकि मैं बहुत मान सम्मान से बुलाता हूँ। किसी भी पैनल पे मैं होस्टिंग करता हूँ तो मेरे दोस्त मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे दोस्त आपके आली बगल तो बहुत सारे निगेटिव लोग घूम रहे हैं, लेकिन निगेटिव बातों पे ध्यान नहीं देना मेरे दोस्त, एक्टिव बातों पे ध्यान दीजिए। और मैं जाते जाते एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, अभी भी ये जो अपना ट्रेंड में चल रहा है क्या होता है, TFT टोकन। आने वाले टाइम के मेरे दोस्त बिटकॉइन है, हमने सब लोग ने बिटकॉइन को मिस कर दिया, तो अभी आपको बिटकॉइन मिल रहा है, ले लीजिए। कल आपने देखा था रात में बहुत सारे लोग ने डॉलर 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 मांगने लगे, क्यों? क्योंकि रेट बहुत हाई गया था मेरे दोस्त। अभी तो ये तो कुछ भी नहीं मेरे दोस्त, जिस समय आपके पास में एक लाख अगर टोकन होंगे, अगर $1 के जाते हैं तो $1,00,000 कितने का हो जाएगा, 1 CR, 1 करोड़ के मालिक मेरे दोस्त रहेंगे। 1 करोड़ मेरे दोस्त कमाने के लिए आप सबको बहुत मेहनत लगती है। मेरा छोटा सा एक कैलकुलेशन था TFT टोकन को लेके मेरे दोस्त। एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा होल्ड करिए, होल्ड इज गोल्ड। और $10, $20, $50, $100 मेरे दोस्त, हम तो एक ही फंडा बोलते हैं अपने टीम में कि भाई लेना है तो $100 से कम मत लीजिए, $100 का लीजिए, जितना भी आता है अभी के टाइम में लेके होल्ड कर दीजिए। क्योंकि अमूल सर जी मीटिंग में बताते हैं 10,000 रुपए का क्रिप्टो मेरे दोस्त अगर आपने 5 साल के लिए छोड़ दिया तो 10,000 रुपए मेरे दोस्त 10 करोड़ में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कम है मेरे दोस्त? बहुत है। तो मेरे दोस्त अब मैं अपने क्लैपिंग के माध्यम से मैं अपने मेंटोर को इनवाइट करना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम शिवानंदु दत्ता जी, मोस्ट वेलकम, कमांड स्टेट सर। थैंक यू, आइए थैंक सर, यू, कंटिन्यू मीटिंग का आगाज कीजिए। थैंक यू विनोद सोनी सर। इतनी बड़ी मंच में इतने खूबसूरत ढंग से आपने मुझे बुलाया और संबोधन करने के लिए। आपका होस्टिंग निराला है और बहुत अच्छा लगता है, इतना खूबसूरत लगता है। দেবাংশুদা, আপনার সাউন্ড ক্লিয়ার নেই, আপনার সাউন্ড একদমই আসছে না। দেবাংশু স্যার প্লিজ। शायद স্যার का ফোন आ गया होगा, আপনারা একটু ধৈর্য ধরে বসুন। আমাদের মধ্যে দেবাংশু স্যার আছেন এবং আমাদের মধ্যে আজকে চাঁদের হাট বসতে চলেছে। অনেকেই হিন্দি ভাষী অনেক লিডার আমাদের মধ্যে আসবেন এবং ওনাদের মূল্যবান বক্তব্য আমাদের মধ্যে পেশ করবেন, যাতে হ্যালো, হ্যাঁ দেবাংশু স্যার, দেবাংশু স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আসুন প্লিজ। এখন মোটামুটি সাউন্ড পাওয়া যাচ্ছে? পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু আওয়াজটা মানে ইকো হচ্ছে। আপনি খুব বড় হলের মধ্যে আছেন মনে হয়, এরকম মনে হচ্ছে, ইকো হ্যাঁ হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম একদম। অ্যাকচুয়ালি বিপ্লব দা আপনারা কন্টিনিউ করুন, আমি পরের দিকে আসছি, কারণ আমি যেখানে আছি সেখান থেকে কথা বললে আপনারা কথা শুনতে পাবেন না। একদম একদম, আপনার আওয়াজটা খুবই ইকো হচ্ছে স্যার। আশিক দা প্লিজ। আপনারা কন্টিনিউ করুন, আমি পরে বাইরে বেরোবো যখন, আমি তখন কল করে নেব। थैंक यू। ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू। आशिक दा प्लीज आप आइए मंच पे और अपनी मूल्यवान शेयरी रखें हमारे बीच, ताकि हमारे सभी लीडर्स, सभी मेंबर्स आने वाले दिन अच्छी हो। आइए सर प्लीज, आशिक सर। थैंक यू विप्लव बसु सर, मजदुल सर, दिवांशु सर, আলিউল স্যার और ওয়েলকাম স্যার স্যার জি, ওয়েলকাম। এবং সাথে যাদের দীর্ঘদিনের আমাদের সাথে পরিচয় এবং গ্রুপে আমাদের এসে মোটিভেট করেন
সঞ্জয় রানা স্যার এবং তফাই স্যার এবং আমাদের নিউ প্রতিভা মাসুদ ভাই এবং আমাদের হেলথ সেন্টার যেটা অ্যাক্টিভ রাখে রঞ্জিত রনি সরকার ভাই এবং আরো যারা শুভাকাঙ্ক্ষী আমাদের গ্রুপটাকে দীর্ঘদিনের তো প্রত্যেককে অভিনন্দন। আমাদের যা ভালো মেসেজ পাওয়ার কালকে রাতেই তার আমরা পূর্বাভাস পেয়ে গেছি। কোম্পানি আমাদের ব্লক চেন নিয়ে আসবে, তার একদম এন্ডিং পয়েন্টে সমস্ত কাজ সেরে নিয়েছে যতটুকু আমাদের জানা। জাস্ট খালি মার্কেটে আমাদের একটা মেসেজ দেবে যে ব্লক চেন আজ থেকে স্টার্ট ফর পিটেস নেট। এরপরে হচ্ছে আমাদের যেটা যেটা কালকেও গ্রুপে আলোচনা হয়েছে, আমাদের গ্রুপে আপনাকে প্রাইমারি বলি যে কালকে রাতে আবেগের বসে আমাদের গ্রুপে অনেকেই রাত 12টার পরে এসেছিল। ওই সময় আমাদের অনেকে আবেগে কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আমাদের গ্রুপে হওয়া উচিত নয় সেটা আবেগে বলেছে, সেটা কেউ প্লিজ মাইন্ড নেবেন না। ওটা আবেগেরই ভাষা, আবেগের মধ্যে রাখবেন। তো ওটা বাদ দিয়ে আমাদের একটাই কথা বলা, আমাদের গ্রুপটা বেঙ্গল কমিউনিটিকে নিয়ে অবশ্যই, কিন্তু অ্যাটাচ উইথ অল হিন্দি কমিউনিটি মোস্ট টপ লিডার যারা এখন আমাদের ভারতবর্ষ নয় পৃথিবীকে আলোর দিশা দেখাচ্ছে। তো ওনাদেরই ছত্রছায়ায় আমরা এই গ্রুপটাকে অ্যাক্টিভ করে রেখেছি। আর মেন হচ্ছে দুঃখের দিনে যারা আমাদের বন্ধু তারাই অ্যাকচুয়ালি প্রকৃত বন্ধু। দুঃখের দিনে যারা আমাদের হাত ধরে রাস্তায় পার করিয়েছে, আমাদেরকে আসার আলো দেখিয়েছে। আজ প্রথম যখন আমাদের এই গ্রুপটা স্টার্ট হয়েছিল, আমি এই গ্রুপে একজন কমিউনিটি মেম্বার, সেখানে 200 থেকে আজ 3000, পরে এটা 30,000-এর রূপ নেবে। তো সেখানেই যারা দীর্ঘদিন আমাদেরকে প্রতি ক্ষেত্রে চলার পথে বিভিন্ন ভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে, টেকনিক্যাল পার্ট, মোটিভেশন পার্ট, কোম্পানির বিভিন্ন ভেতরের নিউজ, আপকামিং নিউজ যারা আমাদেরকে দেখিয়েছে তারাই প্রকৃত লিডার। যেসব লিডার বলার উদ্দেশ্য এটাই, এখন অনেকের আনাগোনা গ্রুপে দেখা যাবে যারা আমাদেরকে পিছনে ফেলে আমাদেরকে সহযোগিতার হাত থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আমাদের ফোন ধরতো না, আমাদেরকে বলতো ট্রেজার এনএফটি চলে গেছে, আপনারা অন্য ব্যবসায় আসুন, আমরা বড় মাপের লিডার ছিলাম, আমরা ইনকাম করছি, আপনারা আবার মাস খেয়ে আমাদের ইনকামে সহযোগিতা করুন। তারা কোনোদিন লিডার নয়, তারা হচ্ছে সুবিধাবাদী, পরজীবী বলে এদেরকে, যে অপরের ইনকামের উপর যারা বেস করে টিকে থাকে তাদেরকে পরজীবী বলে। সেই সমস্ত লিডাররা যখন পরশুদিনে মোটামুটি সিগন্যাল পেয়েছে ট্রেজারের আপ স্টার্টিং হয়েছে এবং কালকে আমাদের ট্রেজারের সবচেয়ে বড় ব্লাস্টিং নিউজ এসে গেছে, ট্রেজার এনএফটি ইজ ব্যাক। তো অনেকে আসবে, অনেকে নিজের ক্ষমতা জাহির করবে, আমার পেছনে 5,000, 6,000, 10,000, আমি অনেক বাঘ মেরেছি, ঘোড়া মেরেছি, ছাগল মেরেছি, সেসব বলবে এবং তার দেখাবে আমি 6 লেভেল লিডার, কেউ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার, কেউ স্টার 1, 2, 3, অনেক কিছু দেখাবে। তো দেখানোটা তাদের উচিত ছিল। আমরা দীর্ঘদিন মার্চ মাস থেকে হিন্দি বলের বিভিন্ন গ্রুপ টোককে আজ এখানে সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভিক মুহূর্তে আমরা এই জায়গায় এসে স্ক্যান করেছি। যারা আমাদের ধাক্কা খাওয়া, উজ্জ্বল না পাওয়া, অল্প অল্প শিখে গ্রুপে আছে, তারাই অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রকৃত সাথী, প্রকৃত বন্ধু। এদেরকে নিয়ে আমরা পথ চলবো। ভাই যেসব বড় সিনিয়র লিডার ট্রেজারে আলাদা প্ল্যাটফর্মে ছিল, এলএমএল প্ল্যাটফর্মে, সেখানে তারা লিডার ছিল। লিডার থেকে যখন কেউ দায়িত্ব সরে যায়, আবার পরবর্তীকালে যে এসে সেই দায়িত্ব ধরে সেই অ্যাকচুয়ালি লিডার। আগে ওল্ড ইজ গোল্ড এখানে নয়, যারা পিছিয়ে পড়ে তারা পিছিয়েই থাকে, যারা পিছিয়ে পড়েছিল লিডারশিপ থেকে তারা পেছনেই থাকবে। সরি, কেউ এটা মাইন্ড নেবেন না। আপনাদের মধ্যে যারা বড় র্যাঙ্কধারী হঠাৎ করে এখানে গ্রুপে এসে হাত তুলে বলেন 5 লেভেল 6 লেভেল ছিলাম, সরি, আপনারা লেভেল প্লিজ বলবেন না। আপনারা পেছন সারি স্টুডেন্ট, পেছনে বসে কিছু শিক্ষা নেন, কিছু শিখুন, আমাদের সাথে কমিউনিটির সাথে হাত মিলিয়ে চলুন। তারাই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। যেখানে সে বলবে আমি আপনার পিছনে আপনাকে সাপোর্ট করব, আমার এই আছে, বাঘ আছে, ঘোড়া আছে, তারা ওই সময়ের পরিযায়ী পাখি, আসবে আবার চলে যাবে। যারা আমাদের হাত ধরে এতদিন এইভাবে টিকে আছে তারাই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। অতএব লিডারশিপ এখানে তারাই দেখাবে, যারা এই কমিউনিটিকে ধরে রেখেছে তারাই আপনাদেরকে ভবিষ্যতে আলো দেখাবে। এবং আমরা একা নয়, টোটাল হিন্দি বলে সমস্ত গ্রুপের লিডাররা আমাদের মধ্যে খুব দ্রুত এসে উপস্থিত হবে। কেন আসবে? তারা বুঝেছে যে এই দুদিনে আমরা আশিকদা হরজিৎ সিনহা আমাদের মধ্যে আছেন। জাস্ট ওকে, আমি কথা বেশি বাড়াবো না, আমাদের মধ্যে हिंदी बोले लीडर चले एसें। तो मोस्ट वेलकम हिंदी ग्रुप का जितने सारे टॉप मोस्ट लीडर हरजीत सिंह जी अपना बंगाल ग्रुप में आ चुका है, मैंने देखा नहीं है, देवांशु दा अभी बताया।
और विजय सोनी सर अभी अपना जो होस्टिंग स्पीच दिया है वो भी बहुत अच्छा है। हम लोग सब मिलके एक फैमिली है, भाई है, ब्रदर है, गार्जियन है। तो सबको एक ही बात बोलूंगा, लीडर वही है जो आपका दुख के दिन में आपके साथ साथ दिया है। जो अभी सुख के दिन में आकर हाथ उठाए वो कभी लीडर नहीं होता है, वो कभी लीडर बनेगा नहीं। जो लीडर रहेगा वो पीछे बैठ के रहेगा, हम लोग के साथ मिलके चलेगा। अगर कोई बताएगा जो मैं इतना बार का लीडर तो प्लीज तो आप अपना कम्युनिटी बनाइए, जितने सारे हो आप लोग के ग्रुप में हम लोग जाएंगे। तो आप यहाँ रहेगा तो हम लोग के साथ में चलना पड़ेगा, पीछे बैठ के सुनना पड़ेगा। सो थैंक्स। कोई इसको बुराई में मत लीजिएगा, हम लोग बहुत कुछ झेल के आया है, बहुत कुछ देख के आया है, इसीलिए मैं थोड़ा खराब बात बोल चुका हूँ। प्लीज मेरा बात को कोई माइंड में मत लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू देवांशुदा, मुझे इस ग्रुप में कुछ बोलने के लिए मौका दे, इसलिए सो थैंक्स। और बिप्लब दा हरजीत सिन्हा सर को बुलाइए। विनय सोनी सर वो उस ग्रुप के लिए निकल गए हैं। काइंडली हरीश सर है या निकल गया? सर देवांशु सर है या देवांशु हाँ निकल हरजीत गया सिंह सर है? उनको निकल गया है। ओ उसका ठीक उतना है ही ठीक है। दायित्व दिया हुआ था। आप हरजीत सिन्हा सर को बुलाइए। ओ বিনয় अभी বিনয় नहीं दिख সোনি रहा जी है, वो अभी निकल तक गए सर? বিপ্লব বিপ্লব বসাক স্যার हरजीत हैं सिन्हा सर है। বিপ্লব বসাক স্যার हैं बोलून দেবাংশু सर স্যার प्लीज। আমি বলছি যে বিপিন সোনি এখনো পর্যন্ত আমাদের গ্রুপে আছেন। আমি अच्छा ওনাকে বলছি तो विपिन जी विपिन सर प्लीज आप आइए और हरजीत बिनोय सिंह सोनी एक्चुअली करेक्शन कीजिए सर, एक्चुअली बिनोय सोनी सर। तो विनय सोनी जी आप आइए और आके प्लीज आप स्टेज को संभालिए प्लीज। वेलकम सर जी, वेलकम। विनय सोनी जी हरजीत सिन्हा सर को बुलाइए सर। मेरी वॉइस प्रॉपर है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रॉपर एकदम क्लियर है। वाओ ग्रेट सर, वेरी वेरी थैंक्स। इस मंच पे फिर से मुझे अगेन आपने इनवाइट किया, इसके लिए तहे दिल से स्वागत सर। और मेरे दोस्त, अब मैं उस पर्सनालिटी को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, उस अपने मेंटोर गुरु जी को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। गजब की वॉइस है, गजब की नॉलेज है मेरे दोस्त, और गजब की पर्सनालिटी है। और सर की आवाज में मेरे दोस्त जादू है, और बढ़िया तरीके से मेरे दोस्त हम सब लोग को गाइड करते हैं, सिखाते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपने बहुत ही मान सम्मान इज्जत से सर को, और अपने क्लैपिंग के माध्यम से हर्षित सिन्हा सर जी मोस्ट वेलकम, सो मोस्ट वेलकम, कमांड द स्टेट सर, क्लैपिंग के माध्यम से। वेलकम सर, सिन्हा सर वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच विनय जी और वेलकम सर जी, वेलकम। वेलकम दिवांशु सर, वेलकम भाई, वेलकम, थैंक्स सर। आपको भी गुड इवनिंग। मंच पे उपस्थित सभी लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। दोस्तों, हालांकि आज मैं पहली बार इस मंच पे आया हूँ। सबसे पहले तो मैं इस मंच पे उपस्थित सभी जो हमारे बंगाल के लीडर्स हैं, मैं एक छोटी सी आपसे गुजारिश करूंगा। देखिए दोस्तों, बंगाली वैसे मुझे, अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बताऊं, ऑलमोस्ट 70 to 80% आई कैन अंडरस्टैंड बंगाली, बट द ओनली प्रॉब्लम इज मैं बोल नहीं पाता, कह नहीं पाता, बट मुझे लैंग्वेज समझ में आती है। तो अगर मैं आप कुछ भी आप मेरे से पूछना चाहे, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी, आप मेरे से पूछ सकते हैं बंगाली में। मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब मैं हिंदी में दूं। और सर हिंदी में ही ज्यादा समय रखिए, ना तो लेते। आप हिंदी समझते हैं सर, आप हिंदी में बिल्कुल रखिए अपना बात, मधुर वाणी बिल्कुल। सुनाइए हम लोगों को टेजर्ट के बारे में, तो बहुत अच्छा थैंक यू होगा सर। थैंक यू सो मच सर जी। देखिए दोस्तों, हम सभी इस वक्त इस मंच पे मैं देख पा रहा हूं कि 312 हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। वी आर ऑल वेरी फॉर्चुनेट पीपल। हम बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं इस वक्त, जो हमारे देवांशु भाई के साथ जो जुड़े हुए हैं। आपके मन में ये सवाल ऑलमोस्ट खत्म हो गया होगा कि कंपनी के तरफ से कोई नोटिफिकेशन का हम वेट कर रहे थे, और वो सवाल खत्म हो चुका है कल रात 11:35 में। दोस्तों, आज के टाइम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ
कहीं ना कहीं हमारा मन थोड़ा सा उदास भी है। उदास इस कारण है, हमें अपने अकाउंट और अपने एसेट को लेके नहीं, हमारे जितने कम्युनिटी है, हमारे दोस्त यार भाई बंधु प्यारे जो हमारे साथी थे कम्युनिटी के, ऐसे कम्युनिटी के मेंबर्स को अब मैं क्या कहूँ, इसमें ऐसे कई सारे जो हमारे लीडर्स हैं जिनका सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा। जाने अनजाने में कुछ बातें थोड़ी कड़वी हो सकती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे आने वाले टाइम पे ये हो सकता है कि इसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहने के बावजूद भी कुछ लीडर्स आपको इंडिकेट करे, इशारा करे, आपको जो है बेला फुसला के जो है आपको किसी और कॉन्सेप्ट में जो है पुल करने की कोशिश करेंगे। आप इतने मजबूर हो सकते हैं कि मान सम्मान उनका रखते हुए आप अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा कर दे। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा दोस्तों, ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास इस वक्त आपके वॉलेट में, आपके एप्लीकेशन के अंदर कितना आपने एसेट कलेक्शन में रखा है। आपके एसेट के आप मालिक हैं। और मेरी एक गुजारिश ये भी है, आप प्लीज आज के बाद कभी भी आपके फैमिली के बाहर चाहे कोई भी हो, एंड ऑफ द डे हम कहते हैं कि चाहे हमारे फैमिली में से कोई भी मेंबर अगर हमें बुरा भला भी कहता है, पर आखिरकार रात को डिनर हम एक साथ करते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि आप प्लीज अपने एसेट को संभाल के रखिए और जितना हो सके अपने एसेट को सेफ एंड सिक्योर करके रखिए। अभी अपने एसेट को जो है आपने कभी भी रिवील नहीं करना है, प्लीज मेरी गुजारिश है। इसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इम्पैक्ट है लाइफ में। एक कहावत है कि कभी भी नेवर एवर आस्क somebody's अकाउंट बैलेंस। कभी भी कोई जेंटल बंदा, एक समझदार व्यक्ति जो है, कभी दूसरों के अकाउंट में कितना बैलेंस है वो नहीं चेक करता। पर ना समझ लोग जो है वो इस तरह की हरकतें करते हैं। दूसरों के गिरेबान में झांक के हमें देखने का कोई हक नहीं है। अपने एसेट को दोस्तों आप हल्के में मत लीजिए प्लीज। उम्मीद है आप तक ये खबर पहुंच चुकी होगी। अभी हमारे TUFT का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है सर्टिक, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट लेजिटिमेट जो प्लेटफॉर्म है, वहां पे इसका स्कोरिंग बहुत ही बेहतर स्कोर मिला है हमें। कल चेक कर लिया हम लोगों ने। और टोकन स्निफर का आपने नाम सुनना होगा, वहां पे भी स्कोर जो है बहुत बेहतर हो चुका है। अगर मैं आपको कंपैरिजन दूं तो आप लोग ऑलरेडी सुन चुके होंगे, BNB के साथ हम अभी कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जो है ये जब कॉइन उन्होंने मार्केट में डिप्लॉय किया था वो प्रोसेस ICO में आया था। अब ICO IDO एक चीज है, ये टेक्निकल चीजें होती है, वो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। अब तक तो खैर हमारे देवांशु सर जी जो है आप लोगों को कई चीजें भली भांति एक्सप्लेन कर चुके होंगे, बता चुके होंगे। मैं एक छोटा सा इसमें आपको अपने कॉइन को लेके इसमें क्या काम चल रहा है और इसके अंदर एक्चुअली कितना पोटेंशियल है उस बारे में थोड़ा आपको मैं विस्तार में बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, हमें चाहे हम टेक्निकली साउंड है या हम कितने स्किल हमारे अंदर डेवलप हो चुका है, वो ज्यादा मायने नहीं रखता। हमारे साथ इतने अच्छे लीडर्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, हम कभी भी उनसे अगर मदद मांगे तो 24 घंटे हमारे लिए वो तात्पर्य रहते हैं। इस मंच पे
इस वक्त हमारे विनय सोनी जी है, और जब तक ये मंच चलता रहेगा, उम्मीद है ट्रेजर आने के बाद, ट्रेजर ऑलरेडी आ चुका है, ब्लॉकचेन आने के बाद भी जो है हमारे यूजर्स को तकलीफ ना हो, प्रॉब्लम ना हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। और क्योंकि इसका एक ये कारण है कि पहले जिस तरीके से हम इसमें काम कर रहे थे, अपना आईडी रजिस्टर कर रहे थे, वो प्रोसेस एंड प्रोसीजर जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आने वाले टाइम पे आप इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। कंपनी का ये एक स्ट्रेटजी था कि उनका प्लानिंग काफी टाइम पहले से था। वो मार्केट में अपना जो टोकन लेके आई है, ये हमें जानकारी बाद में मिली, पर ये सब जो है सोची समझी एक उनकी स्ट्रेटजी थी। बहुत पहले से ये प्लानिंग चल रही थी। कंपनी का जो रोड मैप है वो ट्रैक के बिल्कुल बाहर नहीं है, ऑन ट्रैक है, बिल्कुल कमाल का काम कर रहा है, बहुत बेहतरीन होने वाला है। और इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा और अपने आप में गर्व, आपको फक्र होना चाहिए कि आप ट्रेजर के साथ जुड़े हैं। We should always feel proud about that we are involved in such a wonderful platform. दोस्तों, अभी ज्यादा टाइम नहीं है, हमें प्लान करना है कि अपने कम्युनिटी के साथ एक हम अपने कोलकाता में भी इवेंट रखेंगे। लोकेशन आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम इतने फैमिलियर नहीं है ज्योग्राफिकली वहां पे। और एक इवेंट हमारा दिल्ली में रहेगा हमारे सुंदर सर के साथ, भली बात ही आप जानते हैं। और साथ ही साथ हमारे जितने सबसे ग्रेटेस्ट जो हमारे आज के डेट में मेंटोर है, हमारे जगन्नाथ की नगरी से हमारे अमूल्य सर के साथ हम इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। और यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि आज हमारे साथ इस मंच पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, जब तक ट्रेजर रहेगा, जब तक हम रहेंगे, कोई भी बंदा इस पूरे विश्व के अंदर हमें 1% नेगेटिव नहीं कर सकता। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, यहां प्लीज कोई लेवल को लेके बात ना करे। सबका बराबर स्टेटस है, सबका बराबर यहाँ पे योगदान है, सबका बराबर यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सब एक है और हमें एक होके, एकजुट होके रहना है। दोस्तों, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। कुछ महीने पहले, हालांकि 1 साल भी नहीं हुआ है, श्रीलंका में क्या सिचुएशन था, बांग्लादेश में क्या सिचुएशन था, और आज के टाइम अभी नेपाल में क्या सिचुएशन चल रहा है। दोस्तों, चारों ओर हालात बहुत गंभीर है। ये एक ग्लोबल अफेयर है और इसके कारण जो है वो इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे आम जनता पे भी। दोस्तों, हमें ट्रेजर को लेके बहुत बड़ी तैयारी करनी है, बहुत आगे का प्लान करना है। एक एक टोकन, हमारे जैन साहब कहते हैं कि कई डायमंड आप उसमें परचेस कर पाएंगे। प्लीज उनकी बातों पे गौर कीजिएगा और बिलीव रखिए। एक आखिरी मेरी आपसे गुजारिश है, हो सके तो आपको अगर बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल अगर नेसेसिटी हो, मैक्सिमम 10% आप अपने आप से कमिटमेंट लीजिए। दोस्तों, मैं 10% से ज्यादा और इतने पीरियड, आप पीरियड सेट कीजिए। वो गाइडलाइन हम नहीं देना चाहते आपको कि आप वो क्वार्टरली रखते हैं, हाफ ईयरली रखते हैं, या 1 ईयर का आप टाइम पीरियड रखते हैं। मेरी गुजारिश है वो पीरियड जो है आप मंथली सेट मत कीजिएगा। कंपनी जो है आपको मोर देन योर एक्सपेक्टेशन जो है आपको रिवर्ट देने को तात्पर्य है, ऑलरेडी आपको मिलता रहेगा। पर ये नहीं कि उसके पीछे जो है हम अपनी आदत खराब कर दे। हमें अपने खातिर, अपने परिवार के खातिर, जो है अपने समाज के खातिर, अपने देश के खातिर बहुत
आगे बढ़ना है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं, वो पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में। इसका एक मैं लाइव आपको एग्जांपल दे देता हूं। आज के डेट में 4.19 ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है दोस्तों। ये एक अकेला बीटीसी, कुछ टाइम पहले मैं न्यूज में चेक किया था, पूरे जो बीटीसी का बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है दोस्तों, आपको सुन के हैरानी होगी, उन्होंने डिफीट कर दिया था गूगल को। गूगल जो आज के डेट में डिजिटल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल कंपनी है, सबको डोमिनेट करके रखा है। यूट्यूब गूगल का है, एंड्रॉयड गूगल का है। 90% ग्लोबल जो यूजर्स है उनके पास जितना डिवाइस है आईफोन के यूजर से ज्यादा 99% एंड्रॉयड यूजर्स है। उसका जो मालिक है गूगल, गूगल के एंटायर मार्केट कैप से हमारे बीटीसी का जो मार्केट कैप है वो उन्होंने ओवरटेक कर लिया था। ये पावर है दोस्तों क्रिप्टो की। खैर हमने वो मौका गवा दिया बीटीसी का, इथेरियम का हमने मौका गवा दिया, बीएनबी का हमने मौका गवा दिया। हम मौका नहीं गवाते उस वक्त अगर हमें अमूल्य सर मिल गए होते। दोस्तों हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे निचोड़ के, ऐसे ऑपरेशन करके, कंप्लीट पोस्टमार्टम करके, एक एक बारीकी के साथ जो है हमारे अमूल्य सर आज हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। और हमेशा हमारे हर एक यूजर्स को ये एनकरेज करते हैं कि आप खुद सीखिए। सीखने के बाद जो है आपके अंदर वो बिलीव लेवल, वो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। हमें यहाँ एक दूसरे को जज नहीं करना है, हम सब एक है और हमें आगे चल के यूनाइटेड रहना है। प्लीज दोस्तों मेरी गुजारिश है। कल को मुझे थोड़ा सा डर इस बात का है कि आप अपने एसेट को शायद संभाल के नहीं रख पाएंगे। आप चाहते हुए भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी को लेके आप बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत अनोखा ब्रेकिंग न्यूज मिलने वाला है। हमारे उम्मीद से ज्यादा ये कंपनी हमें रिटर्न देने वाली है। उसके पीछे मैं लॉजिक आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आज के डेट में सबसे लार्जेस्ट जो क्रिप्टो में होल्डर है वो ओनली ट्रेजर का है। बहुत अच्छी होल्डिंग है। साथ में अभी आप देख पा रहे होंगे वॉल्यूम कितना जनरेट हो रहा है। इसमें लिक्विडिटी बहुत बेहतरीन ढंग से जो है समझदारी से ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। बहुत स्मार्ट वर्क हो रहा है यहाँ पे, बहुत तौर तरीके से यहाँ काम चल रहा है। दोस्तों आप थोड़ा सीरियस हो जाएं इन चीजों को लेके। अभी तक ये कॉइन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ऑलरेडी यहाँ मार्केट में जो है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है उनको भनक लग चुकी है, वो अपना परफॉर्मेंस शुरू कर चुके हैं। दोस्तों ये चीजें कुछ टेक्निकल चीजें होती है, फिर भी हमें जानकारी रखनी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फंडामेंटल्स हमें क्लियर होना चाहिए। कारण ये है कि ना चाहते हुए भी हम इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो चुके हैं और हमारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। अभी आगे की आपने प्लानिंग करने हैं, आपके सपने, हमारे सपने हमें साकार करने हैं। एकमात्र दुनिया में एक ये क्रिप्टो के वर्ल्ड में जिस तरह से बीटीसी ने एक हिस्ट्री क्रिएट किया है, सेकेंड हिस्ट्री ये ट्रेजर क्रिएट करने वाला है। दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं 16-17 साल के अंदर जो बीटीसी ने कमाल करके दिखाया है, अगर उस लेवल पे भी अगर ट्रेजर ना पहुंचे, फिर भी हाफ पीरियड, 16 का हाफ कितना होता है? 8 साल। दोस्तों मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं आने वाले 8 साल में 5000 USDT
इक्वल टू 1 TUFT दोस्तों आप देख पाएंगे। इस मंच पे आज पहली बार मुझे मौका मिला है अपनी बातों को रखने का। मिनिमम 5,000 USDT, $5,000 जस्ट विद इन 8 years। उसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो 8 साल में कितने महीने आते हैं, वो आप अगर डिवीजन करके देख लेंगे तो उस रेशियो में ये कॉइन जो है पंप होने वाला है। हमारे उम्मीद से कई ज्यादा इस इंडस्ट्री में वर्क होने वाला है। बीएनबी के साथ तो हम इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि बीएनबी को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं गैस फी में। एक ये मात्र रीजन है। एक्चुअल हमारा कंपटीशन इथेरियम के साथ है दोस्तों। आज के डेट में सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट वहां पे चल रहा है। बीटीसी के बाद आता है इथेरियम। हमारा एक्चुअल कंपटीशन इथेरियम के साथ रहेगा और मुझे उम्मीद है 8 साल मैंने आपको ज्यादा बता दिया, फिर भी चीजों को एग्जैजरेट करके हमें नहीं बताना चाहिए। मेरा अनुमान है आने वाले 8 साल मैक्स टू मैक्स उसमें इथेरियम का जो अभी करंट आप प्राइस देख रहे हो वो क्रॉस कर जाएगा। पर हमें मेंटली जो है हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। वो एसेट क्या हम संभाल के रख पाएंगे, तब तक क्या हम टिकेंगे भी। विडंबना तो ये है दोस्तों, जब ये $1 का हो जाएगा हमारे कई सारे यूजर्स अपना सारा पैसा जो है इकट्ठा करके वो 9-2-11 हो जाएंगे, क्योंकि उनका सपना जो है $1 में टिका हुआ है। प्लीज आपसे मेरी गुजारिश है, थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें और अपने टीम को स्ट्रॉन्ग करें जितना ज्यादा हो सके। मुझे यकीन है हमारे एंटायर इंडियन कम्युनिटी में सबसे ज्यादा यूजर्स पंजाब और बंगाल से है, सबसे ज्यादा यूजर्स, और अदर किसी रीजन में वो नाम मात्र है। इसी कारण मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप उन्हें हाथ जोड़ करके मीटिंग में लेके आइए, उन्हें सब समझाने की कोशिश करें अपने खातिर, उनके खातिर, क्योंकि कल को जाके आप बदनामी का पात्र ना बने। थैंक यू सो मच। काफी टाइम मैंने ले लिया और इसी तरह से हमारी मीटिंग चलती रहेगी। जे Thank you, thank you, ट्रेजर, sir. जे यूएफसी, सब हमारे दोस्तों को सल्यूट है। थैंक यू सो मच। Thank you, thank you, thank you. থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড। বিপ্লব দা, আমাদের মধ্যে বিপিন স্যার আছেন, ওনাকে ওয়েলকাম দ্য স্টেজ করো প্লিজ। थैंक यू हरजीत सिंह सर, आपने हमारे बीच बहुत अच्छी जानकारी दी। आने वाले टाइम पे हम लोग को इस मोटिवेशन वर्ड को जरूर याद रखेगी उपस्थित सारे कम्युनिटी। तो हमारे बीच और एक लेजेंड, एक ग्रेट पर्सनालिटी हमारे बीच मौजूद है, मिस्टर विपिन सर। कम ऑन द स्टेज सर। आप लोग हाथ ताली के साथ में उसको मंच पे इनवाइट कीजिए। विपिन सर, कम ऑन द स्टेज सर, कम ऑन द स्टेज। वेलकम सर, वेस्ट बंगाल। मोस्ट वेलकम ওয়েলকাম ওয়েলকাম বিপিন স্যার, ওয়েলকাম। নমস্কার দাদা, নমস্কার। আপনি ভালো আছেন তো দাদা? আই লাভ ইউ দাদা। वेलकम सर जी, वेलकम। राधे राधे। राधे राधे हरजीत सर। अभिनंदन सर, अभिनंदन। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं आपने। प्लीज कंटिन्यू करें सर, विपिन सर प्लीज। अभी मैं हरजीत सर को सुन रहा था और उन्होंने केवल आपको ट्रेजर नहीं बताया है, उन्होंने आपको पूरा जिंदगी बताया है, आगे कैसे रहना बताया है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि ट्रेजर के बारे में बहुत लोग बहुत सारी बातें बहुत कुछ कह चुके हैं। अब जैसे हम लोग समीर सर को सुनते हैं तो कहते हैं वो जीवन की बातें बताते हैं, सौरभ सर को सुनते हैं तो कहते हैं मोटिवेशन की बातें बताते हैं, अमूल्य सर को सुनते हैं तो लगता है टेक्निकल बातें बताते हैं। मेरा थोड़ा मिक्स सा रहता है क्योंकि मुझे मोटिवेशन आता नहीं ज़्यादा। लेकिन हरजीत सर जब बोलते हैं तो वो पूरी लाइफ निकाल के रख देते हैं। उन्होंने आपसे बोला कि देखिए जो आप अभी देख रहे हैं ना, अगर आपको ये फील, थोड़ा सा रखते हैं इस टॉपिक को क्योंकि नॉलेज होना चाहिए, अगर आपको ये फील होता है कि जो ये हो रहा है या जो जिस देश में होता है, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो श्रीलंका का हो, चाहे वो अभी नेपाल का हो,
ये कंडीशंस को जो हम लोग डीप स्टेट बोलते हैं, इसमें कभी भी अगर देखा जाए तो ये डीप स्टेट का काम क्या करते हैं कि ये यहाँ का नहीं होता है सर, ये सब बाहरी चीजें होती हैं। आपको क्या लगता है कि पब्लिक भड़क गई और सत्ता पलट गई? नहीं नहीं सर, नहीं। पब्लिक भड़काई गई और सत्ता पलट गई। जो जहाँ की सत्ता चाहता है वहाँ की सत्ता में थोड़ा सा चेंजेस करता है, और बस ये दिखाता है कि जो इस समय की सरकार है वो सबसे बेकार सरकार है, निकम्मी सरकार है, इसलिए उसका तख्ता पलट हो जाना चाहिए। और वो एक टॉपिक छेड़ते हैं और उस टॉपिक में जाके लोग फंसते हैं और उसके बाद में पूरी गवर्नमेंट निकाल देते हैं, गिरा देते हैं। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, ये ज्ञान की बात है, नॉलेज की बात है, इसको समझना चाहिए। बांग्लादेश की सरकार अच्छी खासी चल रही थी और कुछ दिनों तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ इसको मैं कोरिलेट भी कर दूंगा, क्योंकि सर ने टॉपिक उठाया था। तो बांग्लादेश की सरकार अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन उन्होंने वहां पे ये, मेरी आवाज आ रही है सर? क्योंकि कॉल आ रही है, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है सर, थोड़ा स्लो है शायद आपका डिवाइस का, वॉल्यूम बटन थोड़ा कम है, थोड़ा बड़ा लीजिए सर। ठीक है ठीक है, देखिए अभी आ रहा ना आवाज? लाउड एंड क्लियर सर। ओके ओके। तो मैं कह रहा था, हाँ, तो हुआ क्या कि वहां पे ऐसा नहीं है कि क्या, अगर हमारे वो गवर्नमेंट बहुत खराब थी और पब्लिक ने एकदम से विरोध किया और पूरे गवर्नमेंट को गिरा दिया, नहीं ऐसा नहीं होता सर। ये एक नैरेटिव सेट किया, नेपाल में भी सेट किया गया, और अब वो नैरेटिव भारत के लिए भी सेट हो रहा है। आप लोग देखिए, हमारे अपने हो, परिवार की तरह रहे, हमने कभी कोई भी जातिवाद या इस तरीके का नहीं फैलाया। सब आप हमारे हो, अपने हो। हमने राधे राधे बोला, आपने राधे राधे बोला। आप जय भीम बोलो, हम जय भीम बोलेंगे। आप या अल्लाह अल्लाह अकबर, पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह या रसूलुल्लाह अगर बोलेंगे तो हम वो भी बोलने को तैयार हैं। हम हर चीज बोलते हैं ना सर। तो यहाँ पे अपने लोग हैं। देखिए अभी एक नैरेटिव भारत में भी सेट हो रहा है। क्या सेट हो रहा है कि गवर्नमेंट के खिलाफ इतनी अराजकता फैला दीजिए। देखिए वोट डालिए, वोट डालने के बाद में कोई गवर्नमेंट आए, इट डजेंट मैटर, लेकिन वोट डालने के बाद में जब गवर्नमेंट बन जाए तो उसके बीच में जब अराजकता फैलाई जाती है तो एक डीप स्टेट जिसे आप बोलते हैं ना, वो डीप स्टेट का एक नैरेटिव सेट किया जाता है, और वहां पे उसी तरीके से धीरे 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 जनता को क्या दिखाया जाता है कि सरकार निकम्मी है। आप देखिए 75% से महबूबा मुफ्ती बनती हैं और 25% के लोग उसको गिरा देते हैं। तो ये नैरेटिव भारत में भी आ रहा है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप हमारे अपने हो। कोई नैरेटिव नहीं है, कोई मार्केट में कुछ नहीं है। जो गवर्नमेंट है वो अपने तरफ अपने अपने लेवल से काम कर रही है। जैसे आज मैं गद्दी पे यहाँ पे बैठा हूँ और आपको अगर कुछ बोल रहा हूँ, तो जानते हो मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है? मेरे शब्दों को इतनी जिम्मेदारी है कि मैं किसी भी तरीके से कोई गलत शब्द ना यूज कर दूं। ऐसे ही जब कोई प्रधानमंत्री गद्दी पे बैठता है ना, तो एक जिम्मेदारी लेके बैठता है। उसकी नजर में हिंदू मुस्लिम ये वो ईसाई कुछ नहीं होता है। जो गलत हो रहा था या कोई चीजें हो रही हैं, तो वो सिर्फ एक फैसला लेता है कि किसी भी तरीके का कोई नैरेटिव ही ना बने। उसका एक ही मुद्दा होता है। मैं किसी की पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे मतलब है किसी गवर्नमेंट से। लेकिन खैर, सर ने बात नैरेटिव सेट किया, तो उसमें जो हरजीत सर ने बात बोली थी वो यही बोली थी। उन्होंने इशारा किया था कि आपको एक होके रहना है, क्योंकि ये नैरेटिव बन रहे हैं मार्केट में, बनेंगे, हम सब एक रहेंगे। हरजीत सिन्हा का कहने का मतलब यही था कि आगे चल के हम सब मिलेंगे, एक साथ सेलिब्रेट करेंगे, किसी भी दुर्भावना के साथ नहीं, अच्छे से, क्योंकि मौसम बहुत बिगड़ रहा है। उस मौसम का हम पे फर्क नहीं आएगा, हम सब एक रहेंगे। ये जो हरजीत सिन्हा जो इशारों में बात कर रहे थे, उसको मैंने थोड़ा डीप बोल दिया है, उसको आप समझिएगा। अब बात करते हैं अपने ट्रेजर की। तो देखिए ट्रेजर में अभी तक के नोटिफिकेशन को और इस नोटिफिकेशन को आप जज करके देखिए। अभी तक के सारे नोटिफिकेशन में क्या आता था? ट्रेजर फंड, और नीचे एक क्वाइन होता था, और उसके बाद में लिखते थे ट्रेजर फंड का रेट जो है 0.001 हो गया। फिर हमने क्या देखा कि रेट कितना हो गया? 0.002 हो गया है, 1.5 हो गया है, और सबके ऊपर लिख के आता था ट्रेजर फंड। टीएफटी की बात होती थी, आने वाले दिनों में टीएफटी क्या करेगा, कितना होल्ड करने से क्या होगा, ये नोटिफिकेशन आपने देखे थे। ये मार्च के बाद से पहला नोटिफिकेशन है, ये मार्च के बाद में पहला नोटिफिकेशन है जो हमसे ये कह रहा है कि ट्रेजर एनएफटी इज कमिंग सून। आप समझिए, अभी तक का जितना नोटिफिकेशन था वो टीएफटी के लिए था। और मैं हर बार अपनी मीटिंग में कहता हूं कि जिस दिन आप ये दो चीजों को एक साथ लेके चलोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। टीएफटी इज अ डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म एंड ट्रेजर एनएफटी इज अ सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। तो जब मैं आपसे बात करूंगा कि हम हवाई जहाज से आए थे, और आप कहोगे कि सर रास्ते में तो स्टेशन पे रुका होगा, तो वो इसलिए आप सोचते हो क्योंकि हवाई जहाज और ट्रेन को आप एक ही समझ रहे हो। तो हवाई जहाज और ट्रेन में अंतर है। हवाई जहाज विदाउट स्टॉपेज सीधा जिस डेस्टिनेशन से चला उस डेस्टिनेशन पहुंचा, उसके स्टॉपेज नहीं होते, बीच में स्टॉपेज होते हैं, स्टेशन नहीं होते हैं, वहां पे पोर्ट होते हैं, एयरपोर्ट होते हैं।
तो उसी तरीके से आप समझिए अभी तक का जितना नोटिफिकेशन था वो TUFT को डेवलप करने के लिए था, TUFT की लॉन्चिंग के लिए था, और TUFT की बातें कर रहे हैं। दैट इज द सेंट्रलाइज, वो डिसेंट्रलाइज। नाउ वी आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द सेंट्रलाइज। उन्होंने बोला है, क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि ट्रेजर NFT कमिंग सून। देखिए उन्होंने ट्रेजर फंड का शब्द का यूज भी नहीं किया, साफ साफ लिखा हुआ है और आज पिछले नोटिस आप उठाएंगे तो उसमें ट्रेजर फंड। अब इसमें क्या हम लोग एक दिमाग लगा सकते हैं कि उन्होंने क्या किया कि चलते हुए रनिंग प्लेटफॉर्म को तो चेंज किया नहीं जा सकता था, तो उन्होंने क्या किया, सारा डाटा ट्रांसफर किया ट्रेजर फंड पे। और ईमानदारी ये थी कि आपकी रिजर्वेशन ना रुके, आपका स्टेक ना रुके, आपका अर्न ना रुके, आप जैसे काम है वो करते रहे। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया और ट्रेजर फंड पे डाल दिया। अभी वो कह रहे हैं ट्रेजर NFT इज कमिंग सून, ना कि ट्रेजर फंड। आप ध्यान दीजिएगा, पुराने नोटिफिकेशन में हर जगह ट्रेजर फंड लिखा हुआ है। इस नोटिफिकेशन में लिखा था ट्रेजर NFT इज कमिंग सून, यहाँ भी लिख सकते थे ट्रेजर फंड इज कमिंग सून, लेकिन ट्रेजर फंड नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है ट्रेजर NFT कमिंग सून। इसका मतलब क्या है, हो सकता है कोई वो नया प्लेटफॉर्म या नई रास्ता या नया कुछ लाने के बाद में वहां पे हो सकता है कि वो कुछ नया जो भी उन्होंने नया चेंजेस किए हों, वो चेंजेस लाने के बाद में वो हो सकता है कि इसको लेके फिर से एक ट्रेजर NFT.xyz की वेबसाइट आए या treasurenft.com जो भी लेके आए, वो लेके आए और पूरा डाटा यहाँ शिफ्ट करे और नए प्लेटफॉर्म को नए रूप रंग में और नए के साथ में वो लेके यहाँ पर आपके सामने आ जाएं। ये केवल छोटे छोटे जो चेंजेस हैं जो हमको देखने को मिल रहे हैं, ये मेरा गणित है, मेरा दिमाग है। आप इसमें कई सारे अंदाजे लगा सकते हैं, कई सारी चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन आप समझिए उन्होंने थोड़े दिन प्लेटफॉर्म चलाने के लिए आपको मौका दिया ट्रेजर फंड का, और मैंने नोटिस किया है कि जितना नोटिफिकेशन आया है उसमें हर जगह ट्रेजर फंड लिखा है। ये पहला नोटिफिकेशन है जिसमें उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ ट्रेजर NFT, ट्रेजर फंड नाम का शब्द ही नहीं यूज किया हुआ है। तो आगे वो क्या करने वाले हैं बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ ये बात पक्की है कि वो कुछ करने वाले हैं, उनके साथ कुछ होने वाला है। और ये दोनों चीजें अलग हैं। जब वो TUFT की बात करते हैं, अभी एक बीच में नैरेटिव उठा था मार्केट में कि हो सकता है कल को वो ये बोल दें कि एप्लीकेशन में कॉइन लेके आओ तभी हम आपका कन्वर्जन करके देंगे। तो सर ये संभव ही नहीं है। मैंने बोला ना, दो प्लेटफॉर्म को अगर आप एक जगह जोड़ेंगे ना तो सब कुछ बवाल हो जाएगा। मतलब आप दही को दूध के साथ खाएंगे तो कैसा स्वाद आएगा, कोई स्वाद नहीं आएगा। एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, एक सेंट्रलाइज। सोच के देखिए हम लोगों ने क्या खरीदा है, $100, $200, $300, $400, $500, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर ऐसा है जिसने 3-3, 4-4 हजार, 5-5, 10-10 हजार डॉलर का खरीदा हुआ है। अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो क्या एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, फिर एप्लीकेशन के अंदर डालेंगे और उसके बाद में उसको कॉइन कन्वर्ट करेंगे, फिर चलाएंगे। वो कहेंगे बाहर में जाए ऐसा कॉइन, अब की बार तो हम किए ले रहे, अगली बार ऐसा कॉइन लेंगे नहीं, और मार्केट क्या होगी, डंप हो जाएगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ट्रेन और एरोप्लेन को आप एक साथ मत मिलते, हवा पर चलता। तो ये मैं बिल्कुल क्यों, जब तक कि आप का अपना है वो डिसेंट्रलाइज है, यानी ट्रस्ट वैलेट में उसका सर का वॉइस नहीं आ रहा है। शायद सर का फोन आ गया होगा। प्लीज आप जरूर बने रहे, सर जरूर आएंगे हमारे बीच। जी 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 सर, तो वेलकम सर। प्रॉब्लम। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा ये क्या नाम जो मैं कर रहा था शायद, हाँ तो ये जो हमारा TUFT है डिसेंट्रलाइज, इसमें सारे वो नियम लगेंगे जो डिसेंट्रलाइज के हैं, सारे वो नियम लगेंगे। डिसेंट्रलाइज का मतलब जिसमें आपका आधिपत्य नहीं है, स्वामित्व नहीं है, जो बना के डाल दिया, जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस में हो गया वही चलेगा, किसी का जोर नहीं, किसी का दबाव नहीं। और जो NFT ट्रेजर NFT की बात कर रहे हैं वो अभी हमारा डिसेंट्रलाइज नहीं था अभी तक, और अभी भी उसमें कुछ ना कुछ अगर पूरा डिसेंट्रलाइज भी कर देंगे तो उसमें अगर ट्रेजर NFT का एप्लीकेशन रहेगा। हाँ चलिए सॉरी, फिर से डिस्टरबेंस हो गया। तो जो उसमें जो हमारा ऐप है, ऐप हमारा सेंट्रलाइज है, और अगर ऐप भी आपका कनेक्ट किया जाएगा ना उससे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से, तो उसमें जो एड्रेसेस लगेंगे, जो भी चीजें लगेंगी, वो हमारी एक तरीके सेमी डिसेंट्रलाइज बोल लीजिए। प्रोसेस के लिए आपको सेंट्रलाइज ऐप का जरूरत पड़ेगा, लेकिन जो उसमें प्रोसेसिंग होगी वो टोटली डिसेंट्रलाइज होगी। जैसे हमारा ट्रस्ट वैलेट है, अब ट्रस्ट वैलेट में क्या है तो पूरा वो सेंट्रलाइज कैसे, लेकिन ट्रस्ट वैलेट और बिटगेट में केवल अंतर इतना है, आप समझिएगा, ट्रस्ट वैलेट, बिटगेट, सेफपाल और आपका जितना, उसमें केवल आंखों से देखने का अंतर है। जो भी आप देखते हैं वो केवल अंतर है, इसके अलावा कोई भी अंतर नहीं है।
ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म और सारे के सारे जो वैलेट्स हैं वो एक ही चीज है। उसमें क्या जाता है, जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपकी चैन यहाँ से उठा के और उनके साथ अटैच कर दी जाती है। तो जो इंटरफेस आता है वो चेंज है, बाकी सब कुछ एक है। वैसे ही हमारा अगर ट्रेजर एनएफटी डिसेंट्रलाइज में आता है तो केवल जो चैन है जो आपको दी जाएगी वो अटैच कर दी जाए डायरेक्ट, और इंटरफेस केवल जो रहेगा जहां से आप देखिए बिटकेट में जब आप की निकालते हैं तो दूसरे तरीके से निकालते हैं, ट्रस्ट वैलेट में की निकालते हैं तो दूसरे तरीके से निकालते हैं, सेफ पाल में की निकालते हैं दूसरे तरीके से निकालते हैं, सिक्योरिटी लगाते हैं तो किसी में कहीं से जाके लगाते हैं, किसी में से कहीं। ये क्या है, ये सेंट्रलाइज का पार्ट है। कल को वो सेटिंग का आइकन ऊपर की जाए नीचे कर दें, कल को वो हो सकता है नीले की जगह आपको पीला कर दें। तो ये क्या, ये सेंट्रलाइज का पार्ट है कि वो कहाँ से आपको जाना है। कल से हो सकता है अभी आपका ट्रांसफर का ऑप्शन आ रहा है, कल को लिख दें सेंड, कभी आपको स्वैप का ऑप्शन आ रहा है, कभी आप लिख दें कन्वर्ट। तो ये उनके ऊपर है, ये सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है कि कन्वर्ट का ऑप्शन कहाँ से देंगे, क्या देंगे। ऐसा ही आगे आने वाले समय में अपना ट्रेजर एनएफटी हो सकता है। अभी वो टोटली सेंट्रलाइज है, हो सकता है कि सेमी डिसेंट्रलाइज हो जाए। सेमी डिसेंट्रलाइज मतलब क्या, इंटरफेस तो रहेगा ट्रेजर एनएफटी का, जो वो कहेंगे करना आपको वो पड़ेगा, और जैसे ही उस बटन पे क्लिक करेंगे वो आपको एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे छोड़ देगा और आपकी जो काम होना होगा वो हो जाएगा। लेकिन वो किसके लिए होगा, वो हमारे आपके लिए होगा, जो आज तक हम लोग रिजर्वेशन करते हैं, जो स्टेक करते हैं। बाहरी टीएफटी के लिए कोई आप पे बाउंडेशन नहीं करेगा कि इसको अंदर ले जाओ तभी ये कन्वर्ट होगा, ये नहीं होगा सर, ये बिल्कुल नहीं होगा। जो भी स्वैपिंग प्लेटफॉर्म स्वैपिंग मेथड देंगे वो आज तक वही देंगे जो डिसेंट्रलाइज रूलिंग में चलता आया हुआ है। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन में मत आइएगा, क्योंकि बहुत सधे हुए बहुत समझे हुए आप लोग रुके हैं और बचे हुए हैं। आपने कभी भी ऐसा पैनिक क्रिएट नहीं किया जिसमें कभी किसी को दिक्कत आई हो। आपने हमेशा मीटिंग में आए, आपने सवाल किया, हमने सवाल का जवाब दिया अपनी बुद्धि से। आपने अपनी बुद्धि लगाई, हमने डिस्कस किया और जो उसका हल निकल के आया वो हमने आपको बताया। अभी आपको हरजीत सर बहुत अच्छे शब्दों में समझा रहे थे कि रुकना है, संभलना है, मिलना है, मिल के चलना है। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और भविष्य में कहीं भी कोई कुछ भी हो जाए, हम बात करेंगे अपनों की, जो हमारी ट्रेजर फैमिली के लोग हैं। हम लोग कभी अलग नहीं होंगे, साथ में रहेंगे। मुलाकातें जहाँ होंगी वहाँ मिलेंगे, जहाँ मुलाकात करनी होगी वहाँ हम सब लोग मिलके बात करेंगे, बैठेंगे। वहाँ पे कोई किसी भी तरीके का हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे, अपनी करेंगे, आपकी करेंगे और अच्छे से रहेंगे। अभी देखिए नोटिफिकेशन आया हुआ है कमिंग सून का, बहुत जल्दी। मैंने फिर बोला था, इस सितंबर का महीना बहुत बदलाव का होगा। आज आप देखिए, हम लोग जब कोई भी काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे कोई ओटीपी नहीं आ रहा है। यानी कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी का मतलब ये कि हर काम आप ओटीपी से करेंगे, और हम आपको ओटीपी ही नहीं देंगे तो आप विड्रॉल क्या लगाएंगे। पहले क्या होता था, ओटीपी आता था, विड्रॉल लगा देते थे, अरे बाद में कैंसिल कर देंगे। कंपनी ने सब कुछ लॉक कर दिया, पासवर्ड आप चेंज नहीं कर सकते, विड्रॉल आप लगा नहीं सकते, क्योंकि उसमें जो है हमारी मेल बहुत इंपॉर्टेंट है और मेल पे कोई ओटीपी नहीं आ रहा है। ओटीपी को उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, उसकी वजह से हम एप्लीकेशन में छेड़खानी नहीं कर सकते, बिल्कुल जाम कर रखा है। अभी धीरे धीरे जब आप समय बिताएंगे तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। कभी नोड लग जाता है, कभी नोड हट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तनों के लिए पैनिक मत होइए, एक इन्फॉर्मेशन लोगों को दीजिए कि हाँ सर ऐसा हो गया, उसके में क्यों हो गया, कैसे हो गया, काहे हो गया, नोड 2 क्यों आ गया, नोड 3 क्यों आ गया, ये सवाल मत कीजिए। क्योंकि जहां आप हैं वहीं हम हैं, हम अपने आइडिया से बता देंगे ऐसा हो रहा था, ऐसा हो जाएगा, आप उसमें संतुष्ट हैं तो ठीक है, वरना ये कैलकुलेशन भी आप अपने दिमाग में कीजिए, अपने आप से सोचिए, अपने आप से समझिए। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन में सबके रखना है। आपको बताना है कि सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो इन्हीं बातों के साथ मैं और क्या कहूँ आपसे, मोटिवेशन के लिए तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि सर मैं आपसे क्या कहूँ, बांस हम लगाते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, बांस की जब खेती करते हैं 5 साल तक उसमें एक अंकुर भी नहीं निकलता है, और उसके 5 साल के बाद में 2 महीने में वो 70 से 72 फुट का हो जाता है। तो आज हम लोगों ने क्या किया है, बांस लगाया है, अभी अंकुर आया है, अब का आगे का जो 2 महीना देंगे ना सर, इसमें 72 फुट का हो जाएगा, 72 फुट का हो जाएगा। और यही सही समय है फसल काटने का। इंतजार कीजिए, मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूँ, जो बहुत मिनिमम कैलकुलेशन है। अगर आपके पास में आपको कंपनी द्वारा दिया हुआ अगर 3000 भी है, तो उसकी मिनिमम जो कैलकुलेशन निकल रही है वो लगभग 2,97,000 या 92,000 के करीब निकल रही है आने वाले दिसंबर में। अगर आपको वहां पे अच्छा लगे, आपने जो पैसा लगाया है 1 लाख, आपके पास अगर केवल 3,000 है तो आप 1 लाख निकाल लीजिएगा, ये मिनिमम कैलकुलेशन है। आप बचा हुआ 197 अपने आगे के लिए पड़ा रहने दीजिएगा। ये 197 ही आपका 1,97,00,000 बन जाएगा, और कब बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ। अपना कॉइन सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है?
हम नहीं, अब सब उसको बाइनेंस के साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है ये एम ही बाइनेंस के साथ का यूट्यूबर और सब कंपैरिजन करने लगे? नहीं सर, ये आपकी ताकत है, आपकी औकात है, आपकी दम है। आपकी वजह से बाइनेंस के साथ कंपैरिजन किसने शुरू किया था? हमने शुरू किया था। हमने नीट एंड क्लीन बोला था कि वो हम बाइनेंस से कंपैरिजन कर रहे हैं। आज वो लोग बाइनेंस के साथ, आपको क्या लगता है यूट्यूबर हमारी बात नहीं सुनता? अरे हमारे भी यूट्यूब चैनल है, वो लोग आते हैं मेन क्रैक्स वहां से चुराते हैं, इतना वो शोध नहीं करते। और आज वो बाइनेंस के साथ कंपैरिजन कर करके रख रहे हैं। और अगर वो भी कर रहे हैं तो इतना तो दिमाग है कि उनको यूट्यूब पे क्या दिखाना है, क्या करना है। हम लोग बाइनेंस से अच्छे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये क्वाइन जो है आज तक के क्वाइन की हिस्ट्री में बेहतर क्वाइन है, सबसे बेहतर क्वाइन है। हम लोग तो बहुत दिन से बोल रहे हैं, मैं बोलता, सबसे पहला शब्द मैंने ही बोला था कि उल्टा क्वाइन है। और आज सब लोग, आज पूरी दुनिया, आज हर यूट्यूबर बोल रहा है कि ये क्वाइन एक ऐसा क्वाइन है जो पहले कम्युनिटी जनरेट किया और उसके बाद में अपने आप को लाया है। और ऐसा क्वाइन जो पहले कम्युनिटी जनरेट किया बाद में आया हुआ, तो ये क्वाइन आगे को बहुत अच्छा जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। विप्लव सर, आपने बहुत अच्छा मीटिंग रखा। देवांशु दादा बहुत बहुत धन्यवाद। हरजीत सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। आपका बहुत 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 धन्यवाद विपिन सर, हम लोगों को इस मंच पे आके मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू अगेन। বিপ্লব দা, মিটিং জারি রাখো। আর হিন্দি বলে যদি কেউ থেকে থাকে সেক্ষেত্রে তাকে হ্যান্ড রেজ করতে বলো। যদি তার কিছু বলার বক্তব্য থাকে আমাদের বাঙালি কমিউনিটিদের মধ্যে, তো সে আসতে পারে। তুমি হিন্দিতে এটা জিজ্ঞাসা করে নিয়ে বলো, নয়তো আমাদের যারা মেন্টর আছে তাদেরকে এক এক করে ডাকতে পারে। থ্যাংক ইউ। আর যদি কোশ্চেন নিতে হয় সেখানে নিতে পারো। থ্যাংক ইউ দীপাংশু স্যার, এবং অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের গেস্ট মাননীয় বিপিন স্যার মহাশয়কে। উনি অসংখ্য মূল্যবান বক্তব্য আমাদের ট্রেজার অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে এবং নোটিফিকেশন নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা আমাদের মধ্যে করে গেলেন, যেটি আমাদের মধ্যে আগামী দিনে সত্যি উপকৃত হব আমরা। তো থ্যাংক ইউ অ্যাগেন বিপিন স্যার। আপনাদের মধ্যে যারা কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চান বা যাদের কোনো ব্যক্তির যদি কোনো শেয়ারিং থাকে, আপনারা অবশ্যই রাখতে পারেন। আপনারা হ্যান্ড রাইজ করুন, আমরা আপনাদেরকে অবশ্যই বলার সুযোগ করে দেব। আমরা শুধু বলবো বা আমাদের গেস্ট বা আমরা এডমিন প্যানেলে বলবো এরকমটা ব্যাপার নয়। আপনারা অবশ্যই হাত তুলুন, আমরা অবশ্যই আপনাদেরকে নেবো, আপনাদের শেয়ারিং নেবো, আপনাদের প্রশ্ন সব কিছুই নেওয়া হবে। তো প্লিজ আপনারা হ্যান্ড রাইজ করুন, আমি আপনাদেরকে ডেকে নিচ্ছি। থ্যাংক ইউ। আর বিপ্লব মাজিদুল স্যার, আপনি যদি মঞ্চে থাকেন প্লিজ স্যার আসুন, প্লিজ কন্টিনিউ দ্য মিটিং। বিপ্লব বসাক স্যার, যদি কিছু মনে করেন, আমি কয়েক কথা ইউসুফ স্যার, আপনার মাইক কাটছে খুব, একটু নেটওয়ার্কে আসবেন ইউসুফ স্যার। যাচ্ছে আমার কথা শোনা যাচ্ছে? একবার লিপ নিয়ে এন্ট্রি করো, লিপ নিয়ে ঢুকো একবার। ক্যান আই অডিবল? এখন পুরো ক্লিয়ার আছে। क्लियर। गुड इवनिंग ऑल। अभी हम लोग के बहुत गेस्ट भी आए थे। हम थोड़ा हिंदी में ही बोलते हैं क्योंकि हो सकता है कोई हिंदी में भी गेस्ट यहाँ है। सो एक्चुअली आज हमारे बहुत खुशी का दिन है और इसी दिन का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब हम लोग को नोटिफिकेशन आए, कब हम लोग कम्युनिटी को बोल सकते हैं कि हमारा जो आने वाला दिन, जो हम लोग पिछले कई दिनों से, कई महीनों से हम जो बोल रहे थे कि क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, जो भी है हम लोग वो बात कर रहे थे, आप लोग को समझा रहे थे, आप लोग हम लोग के बात सुन रहे थे। तो आज वो दिन आ गया कि एक नोटिफिकेशन कल जस्ट एक ड्रॉप हुआ है, ट्रेजर एनएफटी कमिंग सून, उसी में थोड़ा हलचल मच गया। तो शायद आप सोच लीजिए एक मैसेज में हम लोग का इतना पॉजिटिव आ सकता है, तो कल अगर ब्लॉकचेन जिस दिन लॉन्च हो जाएगा तो क्या होगा आप समझ नहीं सकते हैं। और अगर
आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये ऐसा ही चलेगा, नहीं, और भी हम लोग को तकदीर जो है वो हम लोग का तकदीर भी बदल जाएगा, साथ साथ हम लोग का जो कॉन्फिडेंस है, हम लोग का एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगा। तो इंशाल्लाह ये हम लोग का स्टार्ट होगा। हम लोग आने वाला दिन में हमारा तकदीर को हम लोग बदलेंगे। तो एक चीज हम आज जो बोल रहे हैं कि जो MLM सिस्टम, मल्टी लेवल सिस्टम का ताकत, आज इस मल्टी लेवल सिस्टम का ताकत अब देखिए, ये दुनिया का वाहिद सिस्टम है जो इंसान को इंसान से जोड़ते हैं, और ये जल्दी एक पूरा नेटवर्क की तरह, एक परिवार की तरह ये बन जाता है। मेक ए फैमिली, जस्ट मेक ए फैमिली, हम लोग फैमिली की तरह ये हम लोग बन गए हैं। अभी हमारे बातों पे आप लोग विश्वास रखते हैं, हमारे बातों पे आप ट्रस्ट करते हैं, यही चीज है। बट इस सिस्टम को कभी हम लोग ही इस सिस्टम को खराब कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को नियत जब खराब होता है तब इस सिस्टम को भी हम लोग खराब कर देते हैं जो हम लोग को पास्ट में किया हुआ है। आज इस MLM सिस्टम ऐसा वही सिस्टम है जहां हम लोग एक सिस्टम के थ्रू आज जो हम लोग को मिल रहा है, जिसको हम लोग को आने वाले दिन में हमारा तकदीर को बदल रहा है, इस MLM सिस्टम में ही इसको किया है। तो हेड्स ऑफ दिस सिस्टम। हर सिस्टम का एक प्रोसेस होता है, और हर सिस्टम में प्रोसेस में हम लोग अगर चलेंगे तो हम लोग का सक्सेस आएगा, और प्रोसेस में हम लोग को अगर नहीं करेंगे, कोई भी सिस्टम, दुनिया का कोई भी सिस्टम आगे जाके वो सक्सेस नहीं मिलेगा। बिकॉज प्रोसेस ऐसा चीज है जहां आपको कामयाबी मिलेगा ही। दैट इज द प्रूफ, साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है। पिछले जो भी बात हुआ है मैं उसको भूल जाता हूं, बट कुछ चीज हम इसमें दोहरा रहे हैं कि ये जो सिस्टम था, ट्रेजर एनएफटी का जो पिछले सिस्टम था, जो मल्टी लेवल सिस्टम से ये आए थे, हम लोग उसको पॉन्जी स्कीम जो भी हम लोग बोले थे पहले, तो उस सिस्टम में जो पहले आए थे यहां कमा के गया है, अपना बैंक बैलेंस को बहुत बढ़ा के गया है। बट वो लोग भी प्रोसेस में ही काम किए थे। वो लोग सिस्टम को पहले समझा, सिस्टम को वो लोग रीड किया, वैसे ही वो लोग अपने टीम जोड़ा, कम्युनिटी जोड़ा, वो भी मेहनत हुआ है। बट सिस्टम को वो लोग बीच में छोड़ के चले गए, वो उन लोगों का मसला है, उन लोगों का खामती है, हम लोगों का नहीं है। बट हम लोग अभी जो इसमें प्रेजेंट है ना, हम लोग सिस्टम के थ्रू ही प्रेजेंट है, और सिस्टम को प्रोसेसली हम लोग अभी समझ रहे हैं, इसीलिए हम लोग अभी इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं और इस सिस्टम का सक्सेस आज ले रहे हैं, प्रोसेस में है इसीलिए। तो हर चीज को अगर आपको जानना है, समझना है, तो वो प्रोसेस को फॉलो करना है। किसी सिस्टम में आपको करोड़पति बनाएगा क्या लाखपति बनाएगा, रातों रात में नहीं होता है। जिस सिस्टम में रातों रात में करोड़पति बन जाएंगे ना, वो सिस्टम नहीं होता है, वो डियर लॉटरी होता है, वो डियर लॉटरी में मिलता है। बट अभी भी जो हम लोग का अभी जो सिचुएशन है, जहां हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बट हम लोग प्रोसेस पे जा रहे हैं, प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। भले ही अभी हम लोग का TFT टोकन का प्राइस अभी कम है, बट आने वाला दिन में वो जाएगा, प्रोसेस के थ्रू ही जाएगा, विदाउट प्रोसेस नहीं जाएगा। और कंपनी प्रोसेस का थ्रू काम कर रहे हैं, कंपनी जो कर रहे हैं वो प्रोसेस ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, इसीलिए वो देर हो रहा है। और इस देरी के लिए हम लोग को पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर हम लोग पेशेंस नहीं करेंगे, पेशेंस में नहीं रख पाएंगे, तो आपका सक्सेस नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ आप लोग को मोटिवेट करते हैं, हम लोग बात करते हैं
कोई टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं, कोई इंफॉर्मेशन जानकारी देते हैं, अगले पीछे क्या होने वाला है वो हम लोग को जो भी जानकारी है हम लोग देते रहते हैं। इस देने के मतलब आप लोग के साथ हमारा जो हर्ट होता है, हृदय होता है, उसमें हम लोग जोड़ते हैं। और इस जोड़ने से एक 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 करके, जैसे हम लोग अभी इस कम्युनिटी में 3000 लोग ऑल ओवर इंडिया, जो हम लोग 10,000 लोग अभी कम्युनिटी के थ्रू हम लोग जोड़े हैं ना, एक एक करके, वैसे ही हम लोग का TFT टोकन एक एक करके एक दिन करोड़ों में जाएगा। हम लोग को जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं, फोड़ना नहीं। हमारा इरादे, हमारा हौसला बुलंद होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। हम बहुत खुश है कि सुबह से हम जो मैसेज देख रहा था, हमारा कम्युनिटी जिस तरह से रिएक्शन दे रहे थे, वो आज भी मैं बहुत एक्साइटमेंट था कि चलो मेरा कम्युनिटी जो है, हम लोग इतने दिन जो बोल रहे थे कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, आज वो होने के लिए एकदम हम लोग करीब आ गए हैं। और इस करीबी के सामने सभी लोग अभी खुशियां मना रहे हैं। दीपावली पूजा के पहले हम लोग का एक रिहर्सल हो गया मनाने के लिए। तो आप देखिएंगे, हम लोग के साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे, हम लोग के साथ प्रोसेस जो हम लोग बोलेंगे, हम लोग का जो प्रोसेस का जो नॉलेज आएगा, हम लोग आपको साथ शेयर करेंगे। आप लोग इसी प्रोसेस में जाएंगे तो आप लोगों को आने वाला दिन में सक्सेस मिलेगा। और इस सक्सेस के हकदार आप होंगे, हम होंगे, सब इकट्ठे हम सब लोग होंगे हकदार। और इसमें हम लोग का पास्ट में क्या हुआ है, नहीं हुआ है, हम सब भूल जाएंगे। और कौन क्या चीज बोला है, ये सब भूलेंगे। हम लोग का, सब लोग को हम लोग पहचान लिया है, कौन क्या है, कितना किसका ताकत है, कितना लोग क्या बोले हैं, भले बुरे, वो सब को हम लोग दिमाग से छोड़ के अभी हमारा जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लेके चलेंगे। विदाउट एनी प्रोसेस हम लोग नहीं चलेंगे। और हमारे सामने और भी अभी बहुत सारे, जो सक्सेस के बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे आपका सिस्टम हमारे सामने आएगा। उस सिस्टम हम लोग को लूटने आएगा, बट हम लोग को ये जो हम लोग सीख रहे हैं, ये जो एजुकेशन आने वाला दिन में हमारा कामयाबी आएगा। क्योंकि हम कभी भी और फिर कभी भी हम लोग कहीं से और करप्शन में कहीं भी हम लोग और ना ऐड होंगे। कभी भी हम कहीं, हम लोग को ऐसा नॉलेज, ऐसा हम लोग को बनना है कि हम लोग को कोई भी ताकत हम लोग को डिमोटिवेट ना कर सके। सो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ आवर लीडर्स। जो हम लोग बंगाल में देवांशुदा है, आशिक इकबाल सर है, हमारे मजिदुल सर है, हमारे विप्लव बौसाक सर है, हमारे राणा सर है, तोफाई सर है। जो भी हम लोग इस वक्त में, इस टाइम में हम लोग आपको हौसला दिया, सब ने एक काम हम ठीक से किया है। आज वो पता चल रहा है कि हमारा ये सक्सेस है। और इस सक्सेस आने दिन में हम लोग को और भी आगे जाएंगे हम लोग। सो थैंक यू फॉर कम्युनिटी, एंड ऑल्सो आई कॉन्ग्रेचुलेट टू माई कम्युनिटी कि हमारे जो ये सक्सेस आने वाला है, इसका हकदार हम सब लोग हैं। थैंक यू वेरी मच विप्लव बौसाक सर। आप जो यहाँ जो आपका नेक्स्ट जो गेस्ट है उसको आप लाइए और बात कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू यूसुफ सर। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे बीच, ताकि हम लोगों को आने वाले टाइम पे कोई और फलाना टीम का कोई भी कंपनी या कोई भी प्रोजेक्ट में हम ना फंसे। हम लोग फाइनेंशियल से के तरीके से हम लोग बच के रहे। तो इसके लिए आपने अच्छी जानकारी दी, और आने वाले के लिए दिन हम लोगों के लिए अच्छे होने वाली है, ये आपने संकेत देने की कोशिश की। तो सर थैंक यू, आपने बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों के पास पेश की। थैंक यू अगेन।
तो विप्लव मजदूर सर, अगर आप मीटिंग में बने हो तो प्लीज सर आइए और आप मीटिंग को कंटिन्यू कीजिए सर, प्लीज। শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। অ্যাকচুয়ালি আমি বুঝতে পারছি না আমরা এটা বাঙালি মিটিং এ আছি না আমরা মনদীপ স্যারের মিটিং এ আছি। विप्लव सर, हिंदी हम लोगों का कहने का मतलब ये है कि हमारे बीच अभी भी हमारे चीफ गेस्ट हरजीत सिंह सर, विपिन सिंह सर अभी भी अवेलेबल है। तो हम लोग अगर बांग्ला बोलेंगे तो शायद उनको अच्छा नहीं लगेगी या फिर उनको समझने में शायद दिक्कत होगी। আচ্ছা, तो আপনারা सुनिए सर। জানেন না হয়তো বিপিন স্যার এবং অরিজিৎ সিং স্যার ওনারা বাংলা খুব সুন্দর বোঝেন এবং অনেকটা পুরো 75% বোঝেন ওনারা। जानी तो सर, जानी सर। क्या बिपिन सर हमने क्या गलत कह दिया? शायद विपिन सर और हरजीत सिंह सर अभी अभी चला गया। হ্যাঁ, তো বিপ্লব স্যার তো চলে গেছেন, ওনারা স্যারের গেস্ট গুলো। আমরা আমাদের বাংলা ভাষায় আমরা গর্বিত যে আমরা বাঙালি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলবো এবং আমাদের কমিউনিটিতে উপস্থিত সমস্ত মেম্বারসদের শেয়ারিং নেওয়ার চেষ্টা করবো এবং প্রশ্ন উত্তর পর্বে যাব। তো প্লিজ বিপ্লব দা আপনি মিটিং কন্টিনিউ করুন, আমরা সঙ্গে আপনার আছি। প্লিজ কাম অন দা মিটিং স্টেজ। ধন্যবাদ বিপ্লব স্যারকে এবং ধন্যবাদ দেবাংশু স্যারকে, ধন্যবাদ আতিক ইকবাল স্যারকে, ধন্যবাদ মাসুদ স্যারকে এবং ধন্যবাদ ইউসুফ স্যারকে, ধন্যবাদ আলিউল স্যারকে এবং আমাদের ধন্যবাদ জানাই আমাদের মঞ্চে উপস্থিত আমাদের রানা স্যারকে এবং আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের হিন্দি ভাষী কিছু লিডার যেমন বিপিন স্যার এসেছিলেন। তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আজকের আপনাদের মনে একটু আনন্দ আছে তো? আজকে দীর্ঘদিন অবশ্যই পর আপ্লুত উৎফুল্ল। যাদের মাইক দীর্ঘ অন আছে অনেকদিন তারা একটু সাড়া দেবেন, যাদের মাইক অন আছে হু হা একটু সাড়া দেবেন প্লিজ। হ্যাঁ, তাহলে আমরা আরো এনার্জেটিক হবো আর কি। তো আপনারা খুশি হলে আমরা খুশি হব। তো আপনাদের খুশি মানে আমাদের খুশি, আপনাদের সাকসেস মানে আমাদের সাকসেস। আজকে আমরা চিন্তা ভাবনা করেছিলাম যে আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত এখান থেকে কোনো কিছু একটা সাকসেসফুল না কোনো কিছু জায়গা তৈরি করতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা দাঁড়ে দিয়ে চালিয়ে যাব। আমরা তো কোনো কোম্পানির মানুষ নই, কোনো কোম্পানির এমপ্লয়ি নই যে আমরা কোম্পানির খবর আমরা পাবো। আমরা শুধুমাত্র হোয়াইট পেপার দেখে এই যে সমস্ত ৬-৭ জন মানুষ আমরা বাংলার গ্রুপটাকে যারা প্রতিনিয়ত দেখাশোনা করি, প্রতিনিয়ত যাদের মাধ্যম দিয়ে এই বাংলার গ্রুপটা তৈরি হচ্ছে, সেই সমস্ত মানুষগুলো রাত দিন সময় নেই অসময় নেই মিটিং কন্টিনিউ সকাল ৮টা থেকে শুরু করে রাত ১১টা-১২টা পর্যন্ত নিজেদের সমস্ত কর্মকাণ্ড ফেলে রেখে শুধুমাত্র জানা বোঝা করার জন্য সকাল ৮টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত কন্টিনিউ একটা না একটা মিটিং এর মধ্যে ঢুকে থাকে সবাই। তো এর জন্য প্রত্যেকটা লিডারকে আমার তরফ থেকে হ্যাটস অফ, সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে আমরা গতকালকের ১১টা ৩৫-এর পর থেকে আমরা খুবই খুশি আনন্দিত। তার জন্য গতকালকে রাত্রেবেলা আমাদের গ্রুপে একটা মিটিংও হয়েছিল। তো যদি ওই মিটিং এ অনেকে অনেক রকমের কথাবার্তা আলোচনা করেছে, তো আমি আমার গ্রুপের তরফ থেকে আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবো। কিছু মনে করবেন না, কারণ ওটাকে একটা ইমোশনাল টাইম ছিল, অনেকে অনেক কিছু বলে দিয়েছে, ইমোশনাল টাইম অনেক কিছু বলে ফেলে, তার জন্য কেউ কিছু মনে করবেন না। এটা একটা পরিবার, সেই পরিবারে যদি কেউ কোনো কিছু বলে সেটাকে মানিয়ে গুছিয়ে চলতে হবে। আর একটা জিনিস আমি যে জিনিসটা আমি লক্ষ্য করছি, আমরা বিগত কয়েক মাস ধরে একটা যুদ্ধর মধ্যে একটা মানে কম্পিটিশন করতে করতে আমরা আজকের এই জায়গায় এসেছি। তো কিছু ব্যক্তিবর্গ
আমাদের গ্রুপের মধ্যে যুক্ত হন। যুক্ত হয়ে তারা বিভিন্ন রকমের লিংক শেয়ার করেন। এর আগে আমাদের ইকবাল স্যার বলেছিলেন, যদি আপনারা 6 লেভেল 5 লেভেল এক্সেট্রা যাই হন, আপনাদের পেছনে যদি 5-7 হাজার লোকজন থেকে থাকে, সো আপনারা এতদিন একটা কমিউনিটি তৈরি করতে পারেননি কেন? 10 জনের কমিউনিটি কেন তৈরি করতে পারেননি? এতদিন আপনারা কোথায় ছিলেন? যখন টেজার আপনার বাড়ির কাছে এসে দরজায় টক টক করে নক করছে, তখন আপনার ঘুম ভেঙেছে? এতদিন ঘুমাচ্ছিলেন কোথায়? যে সমস্ত মানুষগুলো বিপদের সময় মানুষের পাশ থেকে সরে যায়, তারা প্রকৃত বন্ধু নয়। যারা বিপদের সময় সহযোগিতা করে, তারাই হচ্ছে প্রকৃত বন্ধু। তো আজকে আপনাদের এই কমিউনিটির প্রত্যেকটা মানুষের জন্য যারা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তাদের সঙ্গে তারাই হচ্ছে আপনার প্রকৃত বন্ধু। এখানে আলিউল স্যারের দিন রাত পরিশ্রম, দেবাংশু স্যারের দিন রাত পরিশ্রম, আশিক ইকবাল স্যারের দিন রাত পরিশ্রম, বিপ্লব ভট্ট স্যারের দিন রাত পরিশ্রম, প্রত্যেকেই পরিশ্রম করেছে, নলেজ গ্যাদার করেছে, সেই নলেজ গুলো আপনাদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে। কিসের জন্য? এই কমিউনিটিতে যে সমস্ত মানুষগুলো বিগত দিনে যে সমস্যায় ভুগছিল, সেই সমস্যা থেকে তাকে রিলিফ করার জন্য, সেই প্যানিক সিচুয়েশনটাকে দূর করার জন্য। আর যারা মাঝপথে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তারা যদি এখন এসে আমাদের টিমের মধ্যে এসে বা মিটিং এর মধ্যে এসে বলে আমার মধ্যে 5,000 লোক আছে, আমি এই অমুক অ্যাম্বাসাডার, তো আমার তো মনে হয় না তাকে গুরুত্ব দেয়া। সেই জায়গাটা আশা করবো সেই জায়গাটা সবাই খেয়াল করবে। আসতেই পারে, লিডার ছিলেন, আসতেই পারে। প্রেজেন্ট স্যার, তারপর লাস্ট বেঞ্চিতে তার জায়গা খালি আছে, সেরকম একটা বিষয়। তো এই জায়গাটা আমাদেরকে দেখতে হবে, আর কিছু না। আজকে আমাদের টিম বেঙ্গলের পক্ষ থেকে আমরা দেবাংশু দাকে আমরা স্যার বলে সম্বোধন করি, কারণ আমরা তাকে রেসপেক্ট করি। সেই রেসপেক্টের জায়গা যদি কেউ এসে বলে অন্য কোনো কিছু, তো আমার মনে হয় তার মধ্যে শিক্ষার একটু কমই আছে। হতে পারে সে অনেক বড় লিডার, একটা প্ল্যাটফর্ম অনুযায়ী মানুষকে রেসপেক্ট করা উচিত, রেসপেক্ট দেওয়া উচিত। যাই হোক, আমি আমার কথা দীর্ঘায়ু করব না, আমি বললে আবার অনেক বেশি বলে ফেলি। তো সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, আমার মন ভরা অন্তর ভরা শুভেচ্ছা সকলের জন্য। প্রত্যেকের যেন আগামী দিন প্রত্যেকের ভালো হোক, প্রত্যেকে ভালো হন এবং প্রত্যেকে লাভবান হন, সেই আশা নিয়ে আমি আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আমি আমাদের মধ্যে আমাদের দেবাংশু স্যার আছেন, তো আমি স্যারকে ডেকে নেব। স্যার প্লিজ কাম অন দ্য স্টেজ, প্লিজ কন্টিনিউ। বিপ্লব মাজিদুল স্যার, আমি একটু ছোট একটা আমি মেসেজ দিতে চাই, আমাকে পারমিশন দেবেন? অবভিয়াসলি স্যার, প্লিজ কন্টিনিউ। আচ্ছা, আমি ট্রেনে আছি, হয়তো কোনো সাউন্ড আমার এক্সট্রা আসতে পারে। তো আমি সবাইকে বলি ভাই, অতীতে আমরা আমাদের কমিউনিটি কোনো লিডারের প্ররোচনায় এবং তার ভুল ইনস্ট্রাকশনে ডিসিশনে আমরা অনেক অ্যাসেট হারিয়েছি। তো সো প্লিজ, আমাদের অনেক বড় বড় মোটিভেটর বলে অ্যানালিসিস, তার চক্কর করে আমাদেরকে একসময় ডিসিশন দিয়েছিল যে বাইরে ট্রাস্ট ওয়ালেটকে বিটকেটে আমাদের টোকেন রেখে কি লাভ হবে, আমরা ভেতরে ঢুকালে আমরা আর্নিং কতটা বাড়াতে পারবো, কমাতে পারবো।
ওটা আমাদের অ্যাসেট, কিন্তু সেই তার পুরো প্রেডিকশনটা ভুল। 50% লোক তাদের মানে অর্জিত অ্যাসেট হারিয়েছি। তো এরকম লিডারকে আমরা চাইবো না আমাদের কাছে এসে কোনো মোটিভেশন কথা বলে আমাদেরকে ভুল পথ দেখাক। অরিজিনালি আজ যেখানে 1 লাখ 2 লাখ 3 লাখ টোকেনের ভ্যালু কোথায় পৌঁছেছে, ওনাদের কথা শুনে আমরা বেশ বড় মাপের অ্যামাউন্ট মিনস আপনার টাপ টোকেন অ্যাসেট আমরা টাপ টোকেন আপনার বিট কেটে ঢুকিয়েছি। তো এরকম লিডারও আমাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে। তো এখন কেউ কারো এরকম নির্দেশ মানবেন না। আপনার যে অ্যাসেট যে টোকেন আছে এটাই আপনার কাছে ওপেন অ্যাসেট। এই অ্যাসেট আপনি যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে লাইভ আপনি সেল আউট করে আপনার প্রয়োজনীয় সমস্যা মেটাতে পারবেন। এটা টোটালি আপনার হাতের মধ্যে রাখবেন। এখনো যদি কোনো লিডার আপনাদেরকে বলে যে আপনারা ভেতরে নিয়ে যান আপনার আর্নিং বাড়বে, কোনো প্রয়োজন নেই। আর্নিং কোম্পানি যেটা দিয়েছে অনেক বেশি দিয়েছে। তো এরকম লিডার থেকেও সাবধান। তো আমরা এইসব লিডারকেও চাই না ফিউচারে এসে আমাদেরকেও মিসগাইড করে আমাদের অ্যাসেটকে শেষ করুক। তো সেই সূত্রে তো যেটা আমরা জানি সেই পথে চলবো। এরাও নিজেদেরকে বলেছিল আমি ক্রিপ্টো অ্যানালিসিস, আমি 12 বছর 13 বছর 21 বছর আমি এসবের সাথে যুক্ত আছি। আমরা এটা ভবিষ্যতে পাবো কোন রেশিও কোম্পানির যদি আমাদের ইকুয়ালি কোনো কিছু অ্যাসেট দেয় যে 10:1 কি 100:1, তো সেখানে একটু ভেবে দেখবেন যে আমরা কত অ্যাসেট ওই ভুল ডিসিশনের জন্য হারিয়েছি। তো আমাদের দুর্বলতা তখন আমরা কোনো লিডার পাই না। যে যেটা বলেছে আমি ক্রিপ্টো অ্যানালিসিস্ট, আমি বিরাট কিছু জ্ঞানী, আমি জ্ঞানের ভান্ডার নিয়ে বসে আছি। আমার তাদের কথা শুনে অনেক হারিয়েছি, স্বয়ং আমি নিজেও হারিয়েছি। যে হারিয়েছি সে ডিটেলস বলে আপনারাও ভয় পেয়ে যাবেন। তফাইদা হারিয়েছে, দেবাংশুদা হারিয়েছে, রনি সরকার হারিয়েছে, আলিউল হারিয়েছে। এরকম লিডারের নাম বললে মাথায় হাত পড়ে যাবে। আমরা প্রত্যেকেই 5 লাখের উপরে টোকেন ভেতরে ঢুকিয়ে নিজের মাসটা নিজেরা এখন বুঝতে পারছি যে কতদূর মাসটা আমরা নিজেরা নিয়েছি। সে ব্যক্তির আর নাম বলছি না, ওই ব্যক্তি লাইভ আমাদের গ্রুপে এখন শুনছেন। তো ওনারও একটু শিক্ষা হওয়া উচিত। এবং তিনি কিছুদিন আগে 20 লাখ টোকেন উনি সেল করিয়ে তার নিজের কোম্পানিতে ইনভেস্ট করিয়েছেন। বি কেয়ারফুল, সচেতন থাকবেন। থ্যাংক ইউ স্যার। বলছিলাম বিষয়টা হচ্ছে কি, আমি তো সেরকম কিছু মিটিং এ বলি না। বিষয়টা হচ্ছে কি, আমাকে সবাই মেসেজ করছে কি স্যার কল করব, জিজ্ঞাসা করার কোনো দরকার নেই। যদি কোনো প্রবলেম হয় তো অবশ্যই আমাকে সে রাত 2টো হোক সকাল 6টা হোক অবশ্যই আমাকে কল করবেন, কোনো ব্যাপার না। যখনই প্রবলেমে পড়বেন সেই টাইমে কল করবেন, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এই সব সমস্যাগুলো আমি যেহেতু রিকভার করতে পারছি না, যে মেলে ওটিপিটা যাচ্ছে না, তো ওই তো যাই হোক, আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না যে কি স্যার কল করবো। টাইমে ফ্রি থাকবেন, কল করবেন, কোনো অসুবিধা নেই। ধন্যবাদ আশিক ইকবাল স্যার এবং ধন্যবাদ আলিউল স্যার। আশিক ইকবাল স্যারের একটা কথায় আমার একটা কথা বলতে ভুলে গেছিলাম, সেটা আমি আপনাদেরকে একটু জানিয়ে দিই। সেটা হচ্ছে আপনাদের যেটা আপনারা রেগুলার রিজার্ভেশন করছেন, যে ডলারটা আপনাদের কাছে যাদের কাছে আছে, সকলের কাছে তো নেই, তো যাদের কাছে আপনাদের কাছে ইউএসডিটি আছে তারা প্রতিনিয়ত যেরকম রিজার্ভেশন করছিলেন সেরকম আপনারা কন্টিনিউ রিজার্ভেশন করে যাবেন। ওই ডলারটাকে সোয়াইপ করে কয়েনে কনভার্ট করার এখন কোনো প্রয়োজন নেই। আপনাদের কাছে যে কয়েনটা আছে সেই কয়েনটাই আপনাদের কাছে থাকবে। এবং যদি আমি একটা হিন্ট দিচ্ছি, ধরে নিন আপনার কাছে 100 টাপ টোকেন আছে। যদি 100 টাপ টোকেন থেকে থাকে তার মধ্যে 70টা টাপ টোকেন আপনি 1 মাসের জন্য হোক, 10 দিনের জন্য হোক বা 3 মাসের জন্য হোক বসিয়ে দেবেন। আর 30টা টোকেন আপনার ওয়ালেটে রেখে দেবেন। কোন রকম যদি সিচুয়েশন তৈরি হয় সেক্ষেত্রে ওই 30টা টোকেন আপনাকে সঙ্গ দেবে। বা যদি ইউএসডিটি তে কোন রকম কোনো কথাবার্তা হয়, উইথড্রলের বিষয় আসে যদি আসে,
সেক্ষেত্রে আপনার ইউএসডিটিটা আপনার সঙ্গ দেবে। তো যাদের যাদের ইউএসডিটি আছে প্রত্যেকে আপনারা আপনাদের ইউএসডিটিটা রেখে দিন, যেমন রিজার্ভেশন করছিলেন তেমন রিজার্ভেশন করুন, আর যেমন আপনাদের স্টেকিং বসাচ্ছিলেন আর্নে বসাচ্ছিলেন তেমন আপনারা বসিয়ে যান। একটা 30% আপনার অ্যামাউন্টের মধ্যে 30% কি 25% আপনি আপনার ওয়ালেটে রেখে দিয়ে বাদ বাকি আপনার আর্নে বসিয়ে দিতে পারেন। এইটা লাস্ট আমার বলা ছিল। সো অনেক 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 ধন্যবাদ সবাইকে। আমি আমাদের মধ্যে আমাদের সকলের প্রিয় আমাদের দেবাংশু স্যারকে আমরা ডেকে নেবো। স্যার প্লিজ কাম অন দ্য স্টেজ, কন্টিনিউ ইউর শেয়ারিং স্যার। স্যার দেবাংশু স্যার প্লিজ কন্টিনিউ। বিপ্লব স্যার, আমি যেখানে আছি এখানে কথা বললেই হচ্ছে। মাসুদ স্যার আর রানা সাহেব আছে, দুজনকে ডেকে নিন পর করে। আমি আজকে আমাকে ছেড়েই দিন, কারণ আমি যেখানে আছি এখান থেকে বেরোতে পারছি না। ওই কোথাও ঠিক মতো ইকো আসছে, একটু সমস্যা হচ্ছে। থ্যাংক ইউ। ওকে, ধন্যবাদ স্যার। তো যাই হোক, স্যারের একটু প্রবলেম আছে, তার জন্য স্যার কথা বলতে পারছেন না। তো আমি আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রিয় সন্তোষ রানা স্যার। উনি অনেক অনেক জ্ঞান রাখেন ট্রেজার এনএফটি সম্পর্কে। তো আমি সকলের মধ্যে আমি ওনাকে ইনভাইট করতে চাইছি। প্লিজ কাম অন দ্য স্টেজ মিস্টার সন্তোষ কুমার রানা স্যার। প্লিজ কন্টিনিউ স্যার and continue your sharing sir. থ্যাংক ইউ, অসংখ্য ধন্যবাদ। এত সুন্দর মঞ্চ, এত সুন্দর সময়, ট্রেজারের সেই যে স্বর্ণযুগ ফিরে আসতে চলেছে, সেই মুহূর্তে আমরা গতকাল থেকে যে একটা আনন্দের মধ্যে সকলে, বেশিরভাগ লোক আমরা কাল রাত জেগেছি। আমি তো রাত 2:30টা পর্যন্ত ঘুমাইনি, তারপরে ঘুমানোর চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রাতে ঘুম হয়নি। এটা আনন্দেরই বিষয়। যাই হোক, সর্বপ্রথম এই মঞ্চে ভূমিষ্ঠ সমস্ত ভাবিক কোটিপতিদের নমস্কার জানাচ্ছি। এবং আজকে আমাদের এই মঞ্চ, বেঙ্গল কমিউনিটির এই মঞ্চ অল ইন্ডিয়া মঞ্চের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। আজকে অল ইন্ডিয়া কমিউনিটি হিন্দি বলয় থেকে যেসব প্রচুর জ্ঞানী লোক, যাদের প্রবচনের মাধ্যমে আমরা গত কয়েক মাস ধরে নিজেদেরকে সাজাতে পেরেছি, নিজেদেরকে তৈরি করতে পেরেছি, নিজেদেরকে আমরা কিন্তু সেই পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছি যে পর্যায় থেকে আমরা জীবনে কিন্তু এখান থেকে হার মানার কোনো জায়গা নেই। আমরা বুঝে গেছি যে ট্রেজার এনএফটির মাধ্যমে জীবনে কি হতে পারে, আমরা সেই পর্যায়টাকে বুঝতে পেরেছি। তার কারণ আমরা যে মঞ্চ পেয়েছিলাম সেই মঞ্চের মাধ্যমে। সেখানে একটা কথা প্রসঙ্গে উঠেই আসলো, কিছুক্ষণ আগে আমার এক ভাই বলছিলেন কিছু অসাধু বিজনেসম্যান যারা গত 4-5 মাস প্যানিক সিচুয়েশনের মধ্যে মানুষের ইমোশনকে কাজে লাগিয়েছে, তারা তাদের রুটি শেখার কাজ করেছে। এরকম 2-3টে মঞ্চ আছে যেখানে আমরা বুঝে উঠতে পারছিলাম না, যে মনে হয় ওই মঞ্চে গেলে কিছু পাবো, ওই মঞ্চে গেলে কিছু পাবো, কিন্তু তারা করেছিল তাদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন এখন সবাই। আজকে আমার বলতে লজ্জা করছে, কিন্তু তাদের লজ্জা নেই। এতটা ঘৃণ্য ব্যক্তিত্ব, যারা নিজেদেরকে বিজনেসম্যান বলে, যারা নিজেদেরকে ট্রেজারের মেম্বার হিসাবে গণ্য করে, যে ব্যক্তি 50-60 হাজার লোকের মঞ্চ তৈরি করে ফেলেছে। গতকাল যে নিউজে পেয়েছি আমরা, যে নিউজ পাওয়ার কারণে আমরা সবাই উচ্ছ্বসিত, তারপরেও আজকে সেই ব্যক্তি দেখলাম অন্য একটা বিজনেস যেখানে প্রচুর লোককে নিয়ে তাদের ভাবনাকে নিয়ে খেলা করছে, সেই ব্যক্তি অন্য বিজনেসের প্রমোট করছে। এখনো কোনো লজ্জা শরম আছে? যে প্ল্যাটফর্মে ট্রেজারের নাম করে যে প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে, সেই প্ল্যাটফর্মে এখনো অন্য জিনিস নিয়ে কি করে করতে পারে এরা? শুধু ওই এক ব্যক্তি নয়, এরকম আরো আছে। তাদের মুখের যে ভাষা, একমাত্র বসে বসে ভাষাই তাদের কাছে আছে। তাদের অ্যাকচুয়ালি শারীরিক কর্মকাণ্ড লিডার হিসাবে কোনো গণ্যই আসে না। আমাদের সব থেকে বড় ভুল হচ্ছে আমরা নিজেদেরকে ছোট করে আঁকি,
যার কথা শুনি তাকেই অনেক বড় মনে করে ফেলি। দোষ অ্যাকচুয়ালি আমাদের নয়, গত 4-5 মাস ধরে যে প্যানিক সিচুয়েশন, দোষটা সেই সিচুয়েশনের। যাই হোক, ভুল ভ্রান্তি অনেকে করেছেন ট্রেজারের কমিউনিটির মধ্যে থেকে। তার মধ্য থেকে কিছু লোক যারা ট্রেজার ছাড়া অন্য কিছু করেনি, একমাত্র ট্রেজারের অপেক্ষায় তারা ছিল যে এই প্ল্যাটফর্মে আছি, এখানেই থাকবো। তার মধ্যে যেমন আমি একজন। আশা এই ছিলাম যে এখানে যে অল ইন্ডিয়া কমিউনিটি থেকে যে বড় লিডাররা এখানে, তার মধ্যে অমূল্য স্যার একজন, বিপিন মিশ্রা, আমাদের লক্ষিন্দর স্যার, তারপরে সৌরভ শ্রীবাস্তব, অনেকের নাম কি বলবো, সব একে মহাজ্ঞানী, আমাদের সমীর সিনহাজি, এদের সব প্রবচন, বিজনেস তো নয়, প্রবচন। প্রবচনের ভিতরে বিজনেসের সঙ্গে সঙ্গে মানবিক শিক্ষাটা থাকা উচিত, তবেই তার কাছে লক্ষ্মী সরস্বতী সবই তার কাছে থাকতে পারে। তো এইসব ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে আমরা শিখেছি যে বিজনেসে ট্রেজার এনএফটিতে কি হতে পারে আগামী দিনে, যে কারণে আমরা অনেক লোকই আছে যারা 100% শুধু ট্রেজারের উপরে আমরা বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসাবে রয়েছি, বিশ্বস্ত যোদ্ধা হিসেবে রয়েছি। কিছুক্ষণ আগে মঞ্চে বলছিলেন যে সমস্ত লিডার নিজেদের নামের পাশে বড় বড় লেভেল লাগায়, আমি অমুক লেভেলে আছি, লেভেল 5, লেভেল 6, আমি একদম সমর্থন করছি এই কথার, যে আজকে তাদের জন্য সম্মান ততটাই থাকবে যতটা তাদের প্রাপ্য, তার বেশি নয়। তাদের ব্যাগে 4টে 5টা 10টা করে প্ল্যান এই 4-5 মাসের মধ্যে করে ফেলেছে। আমরা এখন তাদেরকে সেই সম্মান নয়, যতটা প্রাপ্য ততটাই দেবো, কিন্তু তারা ট্রেজারের মেম্বার, সেই হিসাবে তাদেরকে অবজ্ঞাও করবো না। আমরা 4-5 মাস ধরে কোনো ইনকাম পাইনি, কিন্তু আমরা একটা জিনিস ইনভেস্ট করেছি, সেই ইনভেস্ট হচ্ছে আমরা টাইম ইনভেস্ট করেছি। কন্টিনিউ 4 মাস 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা ধরে ডেলি আমরা টাইম ইনভেস্ট করেছি। সেই টাইম ইনভেস্ট করার ফলে কি হয়েছে, যারা টাইম ইনভেস্ট করেছে তারা কিন্তু আজকে লাভ কোথায় পাবে জানেন? এই যে বারবার বলা হচ্ছে যে টিওপি সেল করবেন না, যারা 4-5 মাস ধরে কন্টিনিউ মিটিং এ ছিল তাদের ম্যাক্সিমাম লোক এটা হোল্ড করবে। আর এখন যারা নতুন আসছে বা ট্রেজার ফিরে এসেছে, এইটা দেখে যারা আসবে, তারা কিন্তু এই 4-5 মাসের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান তাদের মধ্যে না থাকার কারণে তারাই আবার সেল করবে। তারা $1 অপেক্ষায় আছে, $1/2 অপেক্ষায় আবার বিক্রি করে দেবে। তারা পারবে না, তারা এর লাভ নিতে পারবে না, এর মূল্যবোধটা তাদের মধ্যে নেই। আমরা যে 5 মাস ধরে যে সময় ইনভেস্ট করেছি, তার ফলস্বরূপ আমরা এটা পাবো কি, আমাদের কাছ থেকে যাদের কাছে যা টিওপি আছে তার মূল্য আমরা পাবো। এটা আমি আশা করছি, পুরো কমিউনিটির কাছে এই আশা রাখি। আমরা এই প্ল্যাটফর্মে আজকে আমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করতে পারি যে অল ইন্ডিয়া কমিউনিটি থেকে হিন্দি বলয় থেকে যে সমস্ত লিডার, এদেরকে আর ছোট করে রাখবেন না, মহাজ্ঞানী এক একজন, তারা কিন্তু আমাদের এখানে এসে তাদের যে মূল্যবান বক্তব্য রাখছে এবং আমাদের জন্য তারা এখানে আসছে। আগামী দিনে এই মঞ্চ আরো বড় হতে চলেছে, সংখ্যা অনেক হবে, হয়তো সংখ্যায় বেশি হবে, কিন্তু তার মধ্যে জ্ঞানী লোক কজন আছে তার সংখ্যা হয়তো সীমিতই থাকবে। যারা ট্রেজারের জ্ঞান নিতে পেরেছে বা আগামী দিনে সঠিকভাবে বুঝতে পারবে, তারাই এখান থেকে লাভ নিতে পারবে। আজকে যারা এখনো বহুরূপী সেজে আমাদের এই মঞ্চেও এসে ঘুরে যাচ্ছেন, কিন্তু আগামী দিনে আমাদের একটা বিষয় সতর্ক থাকতে হবে, ট্রেজারে যাদের 3000 টোকেন আছে তারাও কিন্তু আগামী দিনে বিশাল বড় অ্যাসেটের মালিক হতে চলেছে। এবং যেমন যেমন আপনাদের এই অ্যাসেটের মূল্য বৃদ্ধি হবে, সেইভাবে কিন্তু আপনার পিছনে, আমাদের পিছনে কিন্তু কাঠি নাড়বে এসে, যে এমন এই একটা প্ল্যান আছে, এই প্ল্যানে ওটা এখান থেকে এনে এখানে ইনভেস্ট করো। তো তারা সেই সুযোগের হবে, কেন তারা ট্রেজার থেকে সেইভাবে লাভ দিতে পারবে না। এই মঞ্চে, এইসব মঞ্চে তাদেরকে কিন্তু সেই সম্মানের জায়গা তারা রাখেনি। অতএব তারা আবার চাইবে সেই মানুষের বিজনেস করা, মোরগা লাও কাটো, MLM মানে তাদের কাছে MLM, মোরগা লাও আর মারো। তো আমি সবার কাছে এই অনুরোধ করব যে এই ট্রেজারের কমিউনিটি থেকে যেন একটা ব্যক্তিকে যেন এইসব অসৎ ব্যক্তি যেন নিয়ে না যেতে পারে, তার জন্য আমাদেরকে মুহিম চালাতে হবে, আমাদেরকে প্রতিনিয়ত মিটিং আসতে হবে। আজকে আমাদের এই ট্রেজারের টেকনিক্যাল বিষয়ের উপরে যেসব নলেজ আমরা পেয়েছি, তারপরে যদি আমরা কারো কথায় যদি অনুপ্রাণিত হয়ে যদি কারোর সঙ্গে চলে যাই, তো এই আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য। যাদের কাছে 3000 টোকেন আছে, তাদের আগামী প্রজন্ম সুরক্ষিত 3000 টোকেনের মাধ্যমে, এটা আপনাকে বুঝতে হবে। যদি আপনারা 3-4-5 বছর যদি ওয়েট করেন এই 3000 টোকেন নিয়ে, আমাদের ট্রেজারের যে অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে যে রিওয়ার্ড আসবে, সেই রিওয়ার্ডই খরচা করে পারবেন না। তার জন্য বলছি 3000 টোকেন যার কাছে মিনিমাম 3000 আছে, সেও যেন সেটাকে সুরক্ষিত রাখেন।
কেননা এই 3000 টোকেনের মাধ্যমে আগামী দিনে কি হতে পারে, আমার হরজিৎ সিনহা স্যার বলে গেলেন এই একটা টোকেনের মূল্য কি হতে পারে। আপনি ভেবে দেখুন, 3000 টোকেন খরচা করে পারবেন? আপনার জীবনে খরচা করে পারবেন না, কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত 3000 টোকেনটাকে হোল্ড করে রাখুন। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা প্রচুর টোকেন নিয়েছিলেন, কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন, তারা কারো কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে কত টোকেন নষ্ট করে ফেলেছেন। তারা তাদের নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য নিজেদের মঞ্চে নিজেদের প্ল্যাটফর্মে আমাদেরকে ইনভেস্ট করানোর জন্য মানে কিভাবে তারা পরামর্শ দিয়েছে, এবং অনেক লোকে সেখানে আজকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বসে আছে এবং তারা এখনো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের বেশরম লোকেদের জায়গা নেই প্ল্যাটফর্মে, কোনো সম্মানের প্রয়োজন নেই। মুখে খারাপ ভাষা আছে, কিন্তু এটা মুক্ত মঞ্চ, অনেকে শুনছে, তো সেই নিজের ভদ্রতাটা বজায় রেখে বলবো, এই ধরনের লিডার তো বলা যায় না, এরা হচ্ছে মানুষের ব্যবসায়ী। এই ধরনের অসাধু ব্যবসায়ী থেকে দূরে থাকবেন। আমরা যা পেয়েছি, আমাদের আর জীবনে কোনোদিন কোনো নেটওয়ার্ক করার প্রয়োজন নেই। এটা যদি বিশ্বাস রাখতে পারেন যে জীবনে আর কোনো MLM, কোনো নেটওয়ার্ক মার্কেটিং, কোনো কিছু করার প্রয়োজন নেই। আপনাদের লাস্ট প্ল্যাটফর্ম যেখান থেকে আপনি সাকসেস হবেন, সেই জায়গায় আপনি আছেন। আপনাকে অন্য কোনো জায়গায় কোনো কিছু করার প্রয়োজন নেই। কারো কথায় কান না দিয়ে, যদি আপনি এখনো জ্ঞান ঠিক মতো পেয়ে ওঠেননি, যদি কথাগুলো আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, তাহলে আপনার মধ্যে সেই জ্ঞান, সেই নলেজটা এখনো নেই, আপনি কন্টিনিউ মিটিং এ আসুন, কিছুদিন মিটিং শুনুন। যে সব ব্যক্তিত্ব আমাদেরকে এই একটু পরে, এখনই এখান থেকে মিটিং ওয়াইন্ড আপ হওয়ার পরে চলে যাব, যেটা আমাদের হিন্দি সেকশনের যে গ্রুপ, সেখানে মঞ্জিত স্যারের যে গ্রুপটা, সেখানে চলে যাবো, আপনারাও সবাই আসবেন। তো সেখানে যে সমস্ত মহান হস্তি যারা ওখানে, তাদের কাছ থেকে যেসব জ্ঞান পাওয়া যাচ্ছে, এইসব জ্ঞান ফ্রিতে পাওয়া যায় না। জীবন গঠন করার জন্য তারা যে গঠনমূলক কাজ করছে, দেশ গঠনমূলক কাজ করছে, এ কিন্তু ফ্রিতে পাওয়া যায় না। আপনি এখান থেকে পয়সার সঙ্গে সঙ্গে মানবিক যে দায়বদ্ধতা, সেটা এখান থেকে শিখতে পারবেন। আমরা ধন্য যে ট্রেজার প্ল্যাটফর্মের মতো একটা প্ল্যাটফর্ম পেয়েছি। অনেক বিজনেস করেছি, সন 2002 থেকে করতে করতে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং প্রচুর করেছি, কিন্তু জীবনে কোনোদিন ক্রিপ্টোকারেন্সির নলেজ ছিল না। সেই নলেজটা এখান থেকে পেয়েছি, এবং এটাও বুঝে গেছি যে আর কোনো প্ল্যাটফর্মে যেতে হবে না। তো ঠিক আছে, অন্য প্ল্যাটফর্ম যেটা আমাদের মেইন প্ল্যাটফর্ম, অল ইন্ডিয়া বেজে, যেখানে প্রচুর আমাদের যে মহাগুরুরা রয়েছেন, তাদের সঙ্গে একটু সঙ্গ দেবো, সেখান থেকে কিছু শিখবো, সেখানে যাব। তো আরো এখানে বক্তারা রয়েছেন, দেবাংশুদা রয়েছেন, আরো কেউ রয়েছেন, তাদের বক্তব্য শুনতে হবে, তাদের কাছ থেকেও শিখতে হবে। তো আপনারা সবাই, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। অ্যাকচুয়ালি রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে এই কথাগুলো বলছিলাম, ওই জন্য অনেক রকম আওয়াজ আপনার গাড়ি শুনতে পাচ্ছেন। তো আমি গতকাল একদম লাস্ট পর্যন্ত মিটিং এ ছিলাম, কিন্তু শুধু শুনছিলাম, অনুভব করছিলাম, কথা বলার জন্য ইচ্ছাও ছিল না, শুধু সবার আনন্দ শুনতে, অনুভব করতে ইচ্ছা করছিল। মানুষের মধ্যে কি আনন্দ, কত কিভাবে আনন্দ করছে, কেউ গান গাইছে, কেউ কি আশ্চর্য। তো আগামী দিনে অনেক বড় কিছু হতে চলেছে। জীবনের যে আনন্দ, আমরা যে আনন্দ পাই, সেটা হচ্ছে দীপাবলি হোক, দুর্গাপূজা হোক, প্রতিদিন দীপাবলির মতো আনন্দ আমাদের মনে এসে গেছে। যেদিন চাইবেন সেদিন দীপাবলি, যেদিন চাইবেন সেদিন ঈদ। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। জয় ট্রেজার এনএফটি, জয় টিউএফটি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সন্তোষ কুমার রানা স্যারকে। উনি ওনার মূল্যবান শেয়ারিং উনি আমাদের মধ্যে রেখেছেন, এবং সত্যি আমরা গতকাল থেকে এখনো পর্যন্ত আমরা সত্যি খুব এক্সাইটেড। অনেকে রাত্রে ঘুমায়নি। বিপ্লব স্যার, হ্যাঁ বলুন প্লিজ। কমিউনিটির মধ্যে কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার নিন স্যার। স্যার অলরেডি স্যার 9টা বাজতে 1 মিনিট বাকি, ওই জন্য আমি প্রশ্ন উত্তরের দিকে যাচ্ছি না। কারোর হ্যান্ড রাইজও নেই। না, হ্যান্ড রাইজ আছে। আধ ঘন্টা, বিপ্লব দা, আধ ঘন্টা মিটিংটাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান, কারণ আজকে আমাদের গেস্টরা বলেছেন এবং আমরাই বেশি কথা বলেছি সম্ভবত। তো কমিউনিটির প্রশ্ন থাকতেই পারে, তো যাদের প্রশ্ন আছে আপনারা হ্যান্ড রাইজ করুন। আধ ঘন্টা মিটিংটাকে আরো কন্টিনিউ করা যাবে। ওকে, ঠিক আছে, আপনি হ্যান্ড রাইজ নিন, অসুবিধা ওকে নেই। ওকে, যাদের প্রশ্ন আছে আপনারা দয়া করে হ্যান্ড রাইজ করুন, অবশ্যই আপনাদেরকে ডাকা হবে এবং আপনাদেরকে সহযোগিতা করা হবে। থ্যাংক ইউ।